Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स our continued coverage of the HBL PSL Season 9 and it's been an exciting start to the HBL PSL Season 9. We've seen some fantastic games और अब जो points table है वो भी आहिस्ता आहिस्ता shape पकड़ता जा रहा है. We're going to talk about all of that, about the game yesterday, about the points table and the game ahead. But उससे पहले मैं अपने Pavilion में अपने साथियों को आप लोगों से introduce करा देता हूं. I've got four fantastic cricketing minds with me and all four former captains of Pakistan. First up, a very good classical orthodox opening batsman for Pakistan, captain Pakistan really well. I've got the very polite, very humble, very gentle Azhar Ali. Assalamu alaikum Azhar and welcome. Walaikum assalam. Thank you. Next up, I've got Mr. Dependable, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history and a great friend of mine, Misbah Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam. Bahut shukriya. Next up, a great golfer, better than Waqar Younis, he claims. That's what we believe. We have to see them play together to actually determine who's better. But the professor of the game, I've got none other than the all-rounder of all all-rounders, Janab Mohammad Hafiz. Good evening and assalamu alaikum. Good afternoon. Good afternoon. Chalo, एक ही बात है. आफ्टरनून इवनिंग हो गई ये 5 बज गए. Good afternoon करना है. Right, welcome Hafiz anyways. And ladies and gentlemen, the legend himself, the Sultan of Swing, the swinging Sultan, the man with the magic touch, the king of all all-rounders, and our very own beloved Wasim Akram. Assalamu alaikum Wasim and welcome. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Hope सब ठीक ठाक हो, healthy हो. That's important. Absolutely. All right जनाब, कल के मैच के ऊपर जरा जल्दी से मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं. कल पे एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ था लाहौर कलंदर्स का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, और ये पीएसएल की तारीख में पहली दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को उनके होम ग्राउंड में जो है वो शिकस्त दी. दिस इज हाउ इट वेंट डाउन. लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, व्हिच एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग. 187 for 7. They had a bit of a rocky start, but then Jahandad made a great innings there. 45 of 17 deliveries that set the tone. Akil Hussain, Hasnan picking up 2 wickets each. However, Hasnan was very expensive. उन्होंने अपने 4 ओवरों में 50 रन दिए. Mohammad Amir, of course, Mohammad Amir is reliable like always. 1 for 33 and Abrar there 1 for 40. Quetta Gladiators responding there with Khwaja Nafi making a great impression with cricketing pundits around the country. 60 of the 31 deliveries in a pressure situation, so well played by him. And of course, there was Jason Roy and Saud Shakil again with another 40, showing that he is growing as a batsman. Quetta Gladiators winning this one by 5 wickets. ये थी सूरत हाल कल के मैच की. आइए जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं. ये रहा पॉइंट्स टेबल. अब सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी इस पॉइंट्स टेबल में. और अभी तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों के दोनों जीते हैं. दे आर विद 4 पॉइंट्स विद अ नेट रन रेट ऑफ 0.635. उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स, उन्होंने 1 मैच खेला है और वो जीता है, बट देयर नेट रन रेट इज रियली गुड, 2.750 देयर. इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 1.159, 2 पॉइंट्स. लाहौर कलंदर्स विद 2 मैचेस, 2 लॉसेस एंड a minus 0.797 average. Peshawar Zalmi 1 game, 1 loss, and they are further down the order because of that net run rate 0.80. And then Karachi Kings right at the bottom of the table with a very big net run rate, negative net run rate, and I'm hoping that will improve as we go along. It is still early for this table. We will find out more about it as we go on. With that, आइए नजर डालते हैं आज के मुकाबले पे. Today we've got a very special game for you. This is going to be quite a game because it's match number 5 at the HBL PSL 9. It's Multan Sultans versus Islamabad United live from Multan. Multan Sultans का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से. दोनों ही टीमें बहुत अच्छी लग रही हैं अभी तक. अपने जो मैचेस उन्होंने खेले हैं, they look really good, and this is going to be a good game because it is in the Multan Sultans home stadium at Multan. Wasim, big game today, yes? Good. Yes. काफी दफा यूज किया तो सी good game today. It should be a good game today. I hope so. It's a big game. It's a big game. It's literally a clash of the titan as we call it, especially PSL में. दोनों टीमें बड़ी हैं, दोनों टीमें अच्छी हैं. और although प्रीवियस रिकॉर्ड में 7 में से 6 दफ़ा मुल्तान जीते आई सपोज, और 13 मैचों में से 7 मुल्तान जीते और 6 इस्लामाबाद ओवरऑल. But it'll be difficult to pick the favorite today because एक तो मुल्तान played well last game, convincingly win, so did Islamabad, and playing at home adds a little more confidence as a team. के घर का crowd, सुना है मुल्तान का crowd heavy one-sided, and why not? They want to support their team, and why not? Excellent. Quite an electrifying crowd there. पिछले मैच को मद्देनजर रखते हुए दोनों टीमें जो हैं हफीज बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं. दोनों के कॉम्पोजिशन
भी अच्छा लग रहा है, बट एनी चेंजेस दैट यू सस्पेक्ट विल बी लुक्ड एट? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दोनों टीमों की, जो इस्लामाबाद की बात करें तो वो बैटिंग ओरिएंटेड खेलते हैं, उनकी ज़्यादा जो फोर्स है जीतने की, या जो वो समझते हैं कि जहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो बैटिंग है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो खूबसूरती या उनके जीतने का जो एक मंत्र है वो एक कॉम्पोजिशन है। आई थिंक दे हैव अ वेरी राइट कॉम्पोजिशन, हैविंग गुड स्पिनर्स, हैविंग गुड बैट्समैन, हैविंग गुड फास्ट बॉलर्स, दे यूज़ द वेरिएशन वेरी वेल। कप्तान बहुत अच्छी कप्तानी करता है रिजवान उनकी, जब से वो मुल्तान सुल्तान को कप्तान के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए मुझे लगता है कि आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स अवे फ्रॉम हिम, लेकिन मुनरो की जगह अगर वसीम खिलाया जाए, जो अगर वो अवेलेबल हैं, अगर वो नहीं है, अगर वो होते तो आई वुड लाइक टू हैव हिम स्ट्रेट अवे, क्योंकि मुनरो आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स अवे, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। लेकिन वसीम जिस तरह की फॉर्म में अभी मैंने देखा है कि वो खेल रहे हैं और एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो ये एक ऑप्शन हो सकती थी। अब ये देखते हैं कि उन्होंने उबैद को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि पिछले मैच में मेंटली भी उसको डिस्टर्ब हुआ होगा वो, क्योंकि एक यंगस्टर को एक ओवर के बाद आप हटा दें और वो भी उसका बुरा ओवर गया हो। आई डोंट नो हाउ दे विल गो। दैट्स बीन द केस विद शादाब। अब मेरे ख्याल में कोई 2-3 सीज़न हो गए हैं कि वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा अपने इमर्जिंग प्लेयर को। इमर्जिंग प्लेयर बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, और आपने एज ए कैप्टन, वसीम भाई हमेशा ये बात करते हैं, इमरान भाई हमेशा ये बात करते हैं कि नया प्लेयर जो आता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कप्तान पे कि वो कैसे उसको यूज़ करता है। आपने उसको कॉर्नर नहीं कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खेल रहा है ना, 11 का पार्ट है एंड ही इज़ अ गुड बॉलर। 145 पे उसने बॉल के, तो उसको कहीं ना कहीं आप बॉलिंग कराएं, ताकि वो जब आपको ज़रूरत पड़े मैचेस आएँ तो वो कॉन्फिडेंट हो। अगर आप उसको बिल्कुल सिर्फ 11 की शीट पे नाम लिखना है, ना उसकी बॉलिंग आए ना बैटिंग आए, तो कहीं ना कहीं बड़े मैच में वो आपको ये कमी महसूस होगी पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डेविड मिलान, रीज़ा हेंड्रिक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली लास्ट मैच में मुल्तान के लिए, उन्होंने बड़ा क्राफ्टी उन्होंने रोल जो है वो अदा किया, एंड इट लुक्स लाइक मुल्तान सुल्तान हैव गॉट देयर बैटिंग लाइनअप फिगर्ड आउट। देखिए, जब परफॉर्मेंस अच्छी आती है, ऑब्वियसली ओपनिंग पार्टनरशिप या टॉप ऑर्डर टॉप 3 में से 2 बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं, तो आई थिंक वो हर चीज़ को छुपा देते हैं। तो आई थिंक पहला गेम था, उनकी एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी, जिसको ब्लूप्रिंट जो भी उन्होंने किया था उसमें उनका हर चीज़ में कामयाब हुए। और आई थिंक कि उन्होंने कंडीशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड किया। एवरीवन फेल्ट कि यार बीच में आगे स्लो हो गए थे, लेकिन आई थिंक उन्होंने रिस्पेक्ट दी जब बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कंडीशन थोड़ी सी टफ हुई थी, और उन्होंने हिसाब लगा लिया होगा। यही अच्छी टीमों की और एक्सपीरियंस प्लेयर्स की निशानी होती है कि जब वो पिच कंडीशंस रीड कर लेते हैं और वो एक पार टोटल या एक अच्छा टोटल जिस पे वो मैच जीत सकते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली खेलते हैं। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह के दोनों प्लेयर हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, लेकिन सेंसिबल इनिंग खेली दोनों ने, और यही उनका 3-4 साल से मुल्तान सुल्तान का कि प्लानिंग से चलते हैं, और इवन के लेस टैलेंटेड प्लेयर्स से भी वो ज़्यादा अच्छा काम ले लेते हैं। तो आई थिंक कि यही उनकी स्ट्रेंथ है, और ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी नज़र आई। बट अगेन वन ऑफ दोज गेम के उनका जो चीज़ उन्होंने की वो 100% राइट रही, और आज ये देखना कि वो उस परफॉर्मेंस को बैक कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे लगती है मुल्तान, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो इमर्जिंग प्लेयर है यहाँ पे थोड़ा उनको प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि फैसल अकरम है जो कि रिस्ट स्पिन है, लेफ्ट आर्म, वो कॉन्फिडेंट नहीं है उन पे। यासिर खान को उन्होंने खिलाया जो कि टॉप ऑर्डर में खेलता है, वो एज ए ओपनर खेलता है या 3 पे खेलता है। अब क्योंकि उनके पास दूसरे 3 प्लेयर हैं, वो स्क्वाड वो था टीम में, अब उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, नीचे मैंने नहीं देखा कि कभी वो उस तरीके से खेला हो। तो वो मुझे लगता है कि अब मिडल ऑर्डर में एक ऐसा बंदा है कि जो उस नंबर पे कभी खेला नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन में हो सकता है इनको कभी प्रॉब्लम हो। दूसरा, पिछले मैच में मुल्तान वाले 3 ओवरसीज़ प्लेयर से खेले थे, आप कम से कम 3 से खेल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से। सो अब उनके 2 फास्ट बॉलर आए हैं, एक तो आज आया सुबह क्रिस जॉर्डन, सेकंड ओले स्टोन जिसने अभी IL T20 में दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छी की है। पता नहीं किसको खिलाएंगे, 4 खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। वसीम, शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग फिगर्स देखें पिछले मैच के अंदर, तो वो ज़रा थोड़े से एक्सपेंसिव, 30 हुआ था, 10 रन की एवरेज उन्होंने दिया था। सो इज देयर ए पॉसिबिलिटी दैट दे कुड बी लुकिंग एट कि मे बी धानी शुड सिट इट आउट, इवन दो मिसबा हैज बीन रेविंग कि धानी इज इन ग्रेट फॉर्म और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो। एक मैच से आप परफॉर्मेंस T20 में नहीं निकाल सकते। धानी के पास पेस है, उसने बॉलिंग अच्छी की है, फर्स्ट क्लास में विकेटें ली हैं, लंबी बॉलिंग की है,
सो आई सपोज T20 30 होना 3 ओवरों में नॉर्मल है आजकल, स्पेशली हमारी जैसी गुड पिचेस पे. सो आई विल स्टिक विद धानी. अगर मैंने चौथा खिलाना है तो पूरा अपनी टीम का कम्बिनेशन देखूंगा क्या, देन आई विल प्ले द फोर्थ ओवरसीज प्लेयर. ओले स्टोन विल बी वेरी यूजफुल आई थिंक. ही स्विंग्स, उसका नया बॉल अंदर आता है और पेस है उसके पास, ठीक ठाक पेस है, 140 प्लस है वो ऑन रेगुलर बेसिस. अभी देखा है मैंने उसको वहाँ पे दुबई में. इसी में जो अगर फास्ट बॉलर को रिप्लेस करने की बात हम करते हैं तो Right. मोहम्मद अली डिड अ वेरी गुड जॉब. हाँ, he did. Yeah. तो जब एक बंदा अच्छा कर रहा है और वो सीजनल प्लेयर है, अच्छी क्रिकेट खेल के मोमेंटम के साथ आया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो दे शुड हैव स्ट्रेट अवे. बट मैनेजमेंट कुछ भी और maybe that's Mohammad Ali on your screen now is really very impressive. बड़ी इन्होंने वो की एक मिसबा, अगर आपको याद हो जब आप मैच लाइव देख रहे थे तो एक दो गेंदें इन्होंने जब थोड़ी सी वेवर्ड की, आपने कहा कि दैट्स देन इमीडिएटली ही कनेक्टेड हिमसेल्फ. इसकी जो बॉलिंग है, जो हमने भी देखा है अभी सीजन में, कि थोड़ा सा टेक्स टाइम. Yeah. पहला ओवर जो है वो हर बॉलर लेता है, लेकिन उसको काफ़ी इसने बेहतर किया है. आज शुरू में जब आया तो 2-1 ओवर लग जाते थे इसको सेटल डाउन होने में. Right. अब देखा कि 2-3 बॉल ही उसने किया. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि लेफ्ट हैंडर को नॉर्मली जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वो रिलक्टेंट होते हैं राउंड द विकेट जाने से. इसने जो काम किया है थ्रू मतलब फर्स्ट क्लास के पूरे सीज़न में और अभी पिछली लीग में, स्ट्रेट अवे वो राउंड द विकेट आया. और वो जो एंगल था कट किया है, शान को काफ़ी मुश्किल हुई है उसकी वजह से. सो दैट समथिंग आई थिंक कि लर्नर है, ट्रेनिंग भी करता है, बॉलिंग पूरे सीज़न में की हुई है, ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की है और अच्छा कैश किया उसने इस मौके को जो मिला. अभी इसका एक्शन देखा है, बड़ा डिसेप्टिव सा बॉलर लग रहा है. वो आता है आहिस्ता आहिस्ता आके, फिर एंड में अगर देखें तो पूरी बॉडी और पूरा शोल्डर लगता है. शोल्डर. तो कई दफ़ा देखें बॉल उसका ये हरी भी हुआ है बैट्समैन पे. और ये भी जस्ट कम्स ऑन वेरी क्विक. बहुत अच्छी है. जो हिटिंग द लेंथ है ना 6 to 8 मीटर का, जो ये channel वाली है. एग्जैक्टली. अब ये लेंथ पे अगर हारिस राउफ भी मारे विद हिज पेस, And he used to. हाँ वो ट्रबल करेगा बैट्समैनों को. मार तो चलो T20 में पड़ जाती है, बट और यॉर्कर बड़ा अच्छा करता है, स्लोअर वन, वेरी गुड स्लोअर वन. ये वाला भी करता है, ये वाला भी स्लोअर वन करता है. तो आई थिंक इट्स गुड. और सबसे अच्छी चीज़ टेम्परामेंट. बड़ा मैच आप खेल रहे हैं, प्रेशर गेम है, आके उसको एग्जीक्यूट करना. जो मैं मेन चीज़ जो कह रहा हूँ कि बॉलर्स उस चीज़ को, अपने प्लान्स को अगर कैपेबल भी हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे प्रेशर में. वो कहते हैं ना, मैंने वो सैम से पूछा था, अभी इंटरव्यू किया था उसका वहाँ पे IL T20 में, वो जो खेल रहा है कराची से, जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है, डैनियल सैम्स. सो मैं आई वाज आस्किंग हिम कि ही बोल्ड वेल इन दैट गेम. उसके बाद वेरिएशन 3-4 है, बैक ऑफ द हैंड भी करता है, नकल बॉल भी करता है, ये ऑफ कटर भी करता है. तो कह रहा था वंस आई कमिट कि मैंने ये बॉल करना है, मेरे जहन में डाउट नहीं आता दूसरा. सो एज अ बॉलर इस फॉर्मेट में आपको, मेरा डिफरेंट थ्योरी है कि मैं कमिट तो एक गेंद करूंगा T20 फॉर्मेट में, मगर मेरे पास 2 ऑप्शंस और भी होंगी. जब मेरा हाथ यहाँ पे होगा, बिकॉज बैट्समैन को मैंने देखना उसने करना क्या, उसने रूम देना है, उसने अंदर जाना है, उसने लैप मारना है, उसने रिवर्स मारना है. उस तरीके से 2 ऑप्शंस और जहन में होनी चाहिए. एक ऑप्शन जाएंगे तो आप कई दफ़ा फंस सकते हैं, इन माई ओपिनियन, इन दिस फॉर्मेट. Yeah, you were always a thinking bowler right till the very last moment. I played 5 T20s जब ये शुरू हुआ है 2003 में फॉर हैम्पशायर. इट वाज रियली फन. ऐसे गेम खत्म हो जाती थी. जब मैंने शुरू किया था लैंकाशायर से तो 60 ओवर का एक टूर्नामेंट था. नेट वेस्ट एक बेंसन 55 ओवर्स एंड देन 40 ओवर्स का था संडे लीग. तो जो 40 ओवर संडे के संडे होता था, उसमें रनअप का था कि उन्होंने जाके ना वो एक लाइन लगा देते थे ऐसे करके कि इससे ज़्यादा रनअप नहीं है किसी का भी. तो सारे बॉलर का रनअप वहीं से होता था. Right. 17 to 15 steps. Right. और आई वाज लकी कि मेरा स्टार्ट ही वहाँ से होता था. सो आई हैड नो प्रॉब्लम. बट वो जो बॉलर जिनका रनअप से वो टेक ऑफ करते हैं या भागते हैं, उनको प्रॉब्लम तो होती थी. नॉर्मली वसीम भाई सवाल ये है कि जब आप सोच के दौड़ते हैं कि अच्छा मैंने कौन सा, मतलब मैंने अगर सोचा कि मैंने यॉर्कर करना है, तो ये भी हो सकता है कि आप स्लोअर वन उसमें करें. मुझे लगता है सिर्फ आप उसकी लाइन या लेंथ कई दफ़ा बैट्समैन को देख के चेंज करते होंगे. ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने तेज़ यॉर्कर सोचा हुआ लास्ट मिनट पे आप उसको स्लोअर वन कर दें. आई डिड. I used to. It depends कि बैट्समैन, it is difficult. थोड़ा माइंड को यूज टू करना पड़ता है. इस बैट्समैन को आपने एंड तक देखना ना. T20 फॉर्मेट में तो इधर उधर पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं. वही मैं कह रहा हूँ, उसमें आप उसको देखते हैं, उसके मुताबिक आप लाइन एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको मैचेस में कि मैंने कैसे अपने आप को तैयार करना है कि उसी एंड से मैंने यॉर्कर करना है. और अगर यॉर्कर करना है, अगर वो आगे निकला, अगर मैंने स्लो बॉल भी करनी है तो उसको फिर मैंने ऐसे कर देना, पूरी उंगलियाँ नहीं खोलनी, मतलब इसी को ऐसे कर देना है. बट स्टिल आई थिंक द की
फॉर एनीवन हु हैज़ बेसिकली वेरिएशंस कि एग्जीक्यूशन पे आपको फोकस है। यॉर्कर का मतलब यॉर्कर है, यॉर्कर का मतलब ये नहीं कि मैंने यॉर्कर सोचा लेकिन मैंने कराया सीधा मुंह में, तो वो उसका तो कोई Yeah, you फायदा have to ये practice तो that. फिर भी ठीक है। हमने बाउंसर होते भी देखे हैं यॉर्कर में। नहीं यार, सीरियसली नहीं। चलो 19 का 19 का तो मैं सुनिया सी है, फर्क देखो सुनिया सी। कई फिल्में एग्जिस्ट कर दी हैं अच्छा रियली कई टैलेंट्स हैं ऐसे जो बड़ा कहते हैं कुछ। फाइनल यॉर्कर मारना। अच्छा कप्तान एज ए कैप्टन आई थिंक हम तीनों ने एक्सपीरियंस किया ऐसे बॉलर्स। हमने सेट कर दिया यॉर्कर का सारा प्लान, feel. तो उसके बाद बाउंसर आ गया। Didn't you ask him? एक कड़ा नहीं गेम मैंने तो पूछा था अच्छा। बाकायदा। किससे पूछा था? और उन्हें जवाब कोई नहीं कहा पान मैं यॉर्कर ही कीता सी तो प्लीज दसना कि जरूर। यार ये कम ही नहीं मैंने कहा यार, 8 मीटर का फर्क है। मैंने कहा यार कम चलो यॉर्कर मारते हुए को लेंथ बॉल हो जाता, फुल लेंथ हो जाता, फुल टॉस हो जाता। मैंने कहा एक जो है ना अमेरिका की बात कर रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान की बात करें, इतना बीच में फासला है दोनों के। At this side first time. I'm also, but this is I'm done बड़ी now. बात है कि आपके दौर में आपकी कप्तानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने तो बहुत एक्सपीरियंस किया। नहीं इनकी कप्तानी में भी हुआ है। ये मुश्ताक अहमद को कहते रहे गुगली नहीं करानी वो कराई जाए। अच्छा वो ना भी कराए ना तो पीछे से मोइन भाई इनको बोली ना। मोइन की लड़ाई हुई थी मुश्किल से। मैं कहा मोइन मैं 10 ही ज्यादा भी गुगली करे। अब मैं मिड ऑन पे मिड विकेट पे खड़ा था, कुछ पार्टी थी एज यूजुअल, ब्रिस्बेन मैच था। अब वो ये लेग ब्रेक करे, मोइन मैंने पीछे इशारा कर दे है क्या गुगलिया मैं मुसीबत टैग पायन खुदा दी कसम मैं नहीं की थी। लेग ब्रेक की थी। सबसे मजेदार हुआ था गैबा में जब हम टेस्ट मैच खेल रहे थे तो पिटाई लग रही थी अच्छी खासी। तो इमरान खान सीनियर बॉलिंग कर रहा था, तो हमने ना ऑफ साइड पैक की हुई थी। चल एक तरफ ना बाहर निकालते रहते हैं, तो ना एकदम 7 फील्डर ऑफ साइड पे थे, 2 टांग पे थे सिर्फ। तो ख्वाजा बैटिंग कर रहा था, एकदम ना ठॉक करके मिड विकेट पे ऑन लगी है। तो मैं क्या यार तुझे कहा है बाहर ऑफ स्टंप के कर, तू क्या कर रहा है? कहते कसम से उसने 7वें स्टंप से मारी है। उधर से आपको पता है रिप्ले चल जाता है। Yes, मिडिल एंड लेग पे बॉल था। तो मैंने कहा ये देख झूठ नहीं मारना है। झूठ इतना पक्का झूठ सर 7वें से मारी है, ऊपर साथ में रिप्ले आ गए। उधर की स्क्रीन की क्वालिटी भी ऐसी होती है आपको वाज़े नजर और 2 लगी होती है इधर भी। लेकिन पाकिस्तान टीम में किसी ने कहा था पानी यॉर्कट करा, यॉर्कट मैं क्या पाकिस्तान टीम खेल रहे हैं, यॉर्कट नहीं होता यॉर्कर होता है। मतलब इसी यार नु कट कर दिया ना, मैं बिच्चू निकाल दिया अभी। पहले मैं सुना चाहूँगा सईद की अजमल बांग्लादेश में बॉलिंग कर रहा था, तो मिड विकेट की बाउंड्री छोटी थी, फीस स्लिप पे खड़ा था। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा इसको तुमने जो है ना दूसरा नहीं कराना, वो टांग रख के मारता है तो बाउंड्री बहुत छोटी है। 2 ओवर उसने सब्र किया, तीसरे ओवर में से गेंद कराई, ठा लगा वो आखिरी सीढ़ी को लग के बॉल उसके पास वापस। मैंने यूँ देखा दूसरा कराया सी, कहता नहीं दूसरा नहीं सी, ऑफ स्पिन की थी। हफीज़ की तरफ पीछे देख रहे थे, कहता है दूसरा कराया। कहता नहीं अभी बात कर ही रहा था ना तो रिप्ले चल गया। अभी कहता उधर देख। अब ना जल्दी में वॉक कर रहा है कि मैं फटाफट अगला गेंद करा दूं। मैं क्या 1 मिनट खलो जा, पहले ऐसा हिसाब दे दे। Oh, that's fantastic. Let's take a look at the head-to-head count between these two rivals, Multan versus Islamabad United, brought to you by Ufone 4G. जी आप सॉरी मिसबा कुछ कह रहे थे। लास्ट टाइम मुल्तान वाला मैच मुल्तान जीती थी और वहाँ पे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद जीती थी। हाँ they chased 200 I think Islamabad did against वो Multan। बड़ा वसीम आपने कोई किस्सा सुनाया था, वो जल्दी से मुझे याद, समर ने एक्चुअली याद कराया था कि आपने किसी को बताया कि वो दूसरी तरफ टीम जो थी फुल कंप्यूटर रही, एनालिस्ट बैठे हुए सारे के सारे, इधर आप और डीन जोन्स एक गत्ता लेके बैठे हुए, एक ही सी। ये साथ ही था ना मिसबा। क्या था? रेड बुक थी उसकी। Red Book, he was very much involved. He was ahead of a T20 format. जब He was, उसने he was. What a हमारे fan. साथ पहले PSL में काम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। I mean, he always used to tell us early on, हम उसको समझते थे कि क्या बात कर रहा है, but then we realized कि he's talking sense के 18वां 19 20वां ओवर जीतना बड़ा ज़रूरी है एज अ टीम इफ़ यू आर बॉलिंग। और पावर प्ले जो जीतता है मोस्ट चांसेस, आई मीन स्टैट्स के 60 to मुताबिक 70% % चांसेस उनके हो जाते हैं अगर पावर प्ले में वो ज़्यादा स्कोर करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी डिटेल जो हमें नहीं था पता, आई सपोज उसने आके मैचअप्स बहुत ज़्यादा मैचअप्स को, हाँ एग्जैक्टली वो मैच कई दफ़ा ऐसा मैचअप होता था जो आप नॉर्मली सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन जब आप बाकी नंबर्स निकालते थे और नंबर्स सामने होते थे तो आप सरप्राइज हो जाते थे, अपने बारे में सरप्राइज हो जाते थे। मेरे साथ उसने डिस्कशन की कि तुम ये वाला बॉलर हो, तुम अगर जाओगे पहले 2 बॉल यूँ खेलोगे तो तीसरा रिलीज शॉट तुम्हारा ये होगा, तुम्हें ये वाला गेंद होगा तो 2 गेंद होंगे, तो फिर उसके बाद तुम ये वो नंबर्स निकाल के, तो मैं देख रहा हूँ अच्छा मैं खेलता हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा इस चीज़ को। तो उस पर काफ़ी हेल्प हुई कि नहीं, इसको ट्रेंड को चेंज करना है, क्योंकि ये तो सारी टीमों के पास है। तो ऑलरेडी वो कई दफ़ा मैचेस में ऐसे होता था कि वो आप फील्ड चेंज हो जाती है या वो बॉल चेंज हो जाता है। तो आई थिंक प्लेयर्स अगर थोड़ा सा इसको देखें तो हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। Yeah. Well, he was a legend, no question about it, and may he rest in peace. And with that, we're going to take a break here in the pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Keep watching is Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान's first ever HD Sports channel. Our continued coverage of the HBL PSL Season 9, match number 5 coming up for you today. And in the pavilion, I'm joined with 4 fantastic people. I've got the most successful Test captain here of Pakistan, Misbah ul Haq, who I just absolutely adore. Mwah. Good boy. The great legendary Sultan of Swing, Wasim Akram, and of course Mohammad Hafiz and Azhar Aleem. तुम लोगों के पास नहीं आ रहा है, तू घबरा गया था। अजहर ने कहा पता नहीं इतना प्यार नहीं करते, क्या हो जाएगा, उन दोनों से करते हैं। Misbah is in total in absolute shock of what has just happened to him. यार मोहब्बत है आपसे मेरी, आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन अपना काम करके आमद होती है ना भाई को। All right, folks, let's get back to business. We were talking about Multan Sultans versus Islamabad United. Multan Sultans की हमने बात करी. Let's talk about Islamabad United now. Islamabad United also looking really, really good, Wasim. And for them, it looks like the composition has kind of been good so far. They don't really have any gaps or loops, you see? नहीं, so far बड़े मज़े से मैच जीते हैं इस्लामाबाद वाले। आई सपोज 200 किया उन्होंने। एलेक्स हेल्स 36, शादाब खान आके बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की है, बॉलिंग भी अच्छी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम हैप्पी फॉर शादाब बिकॉज ही स्ट्रगल इन IL T20। थोड़ा अब मैच प्रैक्टिस का नहीं लग रहा था, बट उसके बाद फिर इन्होंने 74 किया 41 गेंदों पे। आगा सलमान लुक्ड रियली गुड, वेरी डिफरेंट। उसको हम समझ रहे थे कि वो खाली लंबी रेड बॉल का प्लेयर है, बट उसने साबित किया है कि नो, ही इज़ गॉट स्पेशल टैलेंट दैट बॉय। बट या There you go, there you see him on the screen there, Agha Salman. Misbah, everybody is looking at this HBL PSL Season 9 very closely because आगे आपका जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है जून में, उसकी बहुत सारी जो है वो तैयारियां इस HBL PSL 9 से की जाएंगी, सिलेक्शन इधर से की जाएंगी। मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मिडिल ऑर्डर के लिए वो है। What do you think of the prospects of Agha Salman for this World Cup? आई थिंक मैंने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान के लिए जो अभी अगर इस PSL को भी देखें, ओवरऑल क्रिकेट को, तो टॉप ऑर्डर में तो बहुत ज़्यादा बैट्समैन है, परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा कंपटीशन है। लेकिन जैसे ही आप नंबर 4, 5, 6 पे आते हैं तो आपको नज़र कोई नहीं आता, कोई परफॉर्मेंसेस, वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। तो पाकिस्तान इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट, और ऐसा बैट्समैन जो 4, 5 और 6 का जो बैट्समैन है, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है T20 क्रिकेट में, ओवर नंबर 7 to 15 और फिर फिनिश करना उसको। इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत वो जो लंबी क्रिकेट का टच भी होना चाहिए, आपको सेंस भी होनी चाहिए। तो ऐसा प्लेयर आपको चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कंसिडर कर सकता है इसको, बिल्कुल। वो जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में खेला है, परफॉर्मेंस किया है उसने, और अभी जिस तरीके से वो T20 में खेल रहा है, थोड़ा सा पहले था कि स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है, बट उसने इम्प्रूव किया है। अभी रिसेंटली वो SPL में खेला है, बड़ा ज़बरदस्त खेला है नंबर 4 पे। अभी पहला मैच खेला है यहाँ पे भी। द वे ही वो जिसको हम बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो हमें चाहिए T20 क्रिकेट में, वो नज़र आ रही है कि भाई आई कैन प्ले एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 200 और मैं कंसिस्टेंटली भी खेल सकता हूँ। ओवर्स एज वेल। फील्डर आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा तो एक ही फील्डर नज़र आ रहा था पाकिस्तान टीम में, स्लिप में भी कैच कर रहा है, बाहर भी कैच कर रहा है। सो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त एक पैकेज है, गुड हेड है, एक थिंकिंग क्रिकेटर है। तो किस नंबर पे तेरे ख्याल में ये सूट? मुझे लगता है 4 नंबर, 4, 5 ये बेस्ट नंबर है। ऐसे नंबर पे अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि लेट में फिर आपको ये होता है कि थोड़े से ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो आते ही जाके खेलना शुरू कर दे। बट द वे ही इज़ बैटिंग, नंबर 4 में मैंने अभी पिछले टूर्नामेंट में भी इसको देखा है,
He's just performing very well. हफीज़, ये बड़ा थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर बड़ा क्रिटिकल हो जाता है इस फॉर्मेट के अंदर, एक्चुअली हर फॉर्मेट में, बट इसमें क्योंकि या तो उनको बहुत देर से बारी मिलती है, जब बिल्कुल 2-3 ओवर रह जाते हैं, 4 ओवर रह जाते हैं, दे रियली नीड टू कम इन एंड गेट गोइंग स्ट्रेट अवे, या फिर ये कि अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो दे हैव टू देन काइंड ऑफ बिल्ड द इनिंग्स एंड गिव यू अ रिस्पेक्टेबल टोटल. दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ प्लेयर विद अ लॉट ऑफ टेम्परामेंट जो कि फ्लूइड तरीके से खेल सके, कैन डू बोथ साइड्स. ये देखें, जो 4-5-6 की मैनेजमेंट है या एज ए प्लेयर आप सोचते हैं, वो आप सिचुएशन हैंडल करते हैं. वो टफ भी हो सकती है और आसान भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपकी जल्दी बारी आ जाती है कि आपके 2 बंदे जल्दी आउट हो गए हैं, और आपकी टेक्निक अगर नहीं है एब्जॉर्ब करने की, या टेक्निक नहीं है उस प्रेशर को हैंडल करने की, तो आप कोलैप्स करते हैं. इसलिए काफ़ी प्लेयर अगर आप देखें, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इनको बहुत ट्राई किया गया. जब जब इनकी 5 या 7 ओवर पहले बारी आई, दे कुडंट मैनेज दैट प्रेशर. तो आपको एक एब्जॉर्ब करने वाला, रोटेशन स्ट्राइक करने वाला प्लेयर ज़रूर 4-5-6 पे चाहिए, जिसमें हिटिंग पावर. देखें, पावर हिटिंग, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक रॉन्ग टर्म है जो इस्तेमाल की जा रही है. एवरी प्लेयर शुड हैव दैट एबिलिटी टू हैव दैट पावर हिटिंग विद इन हिमसेल्फ. ये नहीं हो सकता कि पावर हिटर एक और होएगा, कंसोलिडेटर एक और होएगा. सो एवरी वन शुड डेवलप हिमसेल्फ अकॉर्डिंगली. मेरा अपना ख्याल है कि जो अभी आपने बात की, 2 बातें मैं करना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ज़रूर यहाँ पे प्लेयर को देखा जाए, लेकिन ये वो कंडीशंस नहीं है जो आपको वेस्ट इंडीज़ में मिल रही है. Okay. ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हर बंदा बैटिंग तो कर सकता है, बॉलिंग यहाँ पे करना मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट PSL इंडीज की कंडीशन कुछ थोड़ी, क्या पीछे पे बॉल बहुत मुश्किल रुकेगा, है वहाँ पे. जब तक आप, लाइक मैं रिसेंटली CPL के 3-4 सीजन खेला, कुछ वहाँ पे अच्छे हैं लेकिन कुछ तो बहुत हॉरिबली बैड है. ओके. तो आपको स्पिन मैनेजमेंट, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग शॉट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आई वॉन्टेड टू हैव आजम खान, क्योंकि वो CPL के अंदर बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे के आए थे. इसलिए सोचा था कि अगर कोई नज़र नहीं आ रहा तो लेट्स ट्राई हिम. इसलिए हमने कोशिश की, मैंने कन्विंस किया पहले वहाब रियाज को एज ए सिलेक्टर. ही अंडरस्टूड दैट माइंडसेट. फिर उसके मुताबिक हमने कोशिश की कि हम उसको खिलाएं, और वो मेरी समझ के मुताबिक उसको बाहर नहीं करना. उसको अगर 3 मैच वो वहाँ पे अगर वो नहीं अच्छा कर सका, ही शुड कंटिन्यू विद द टीम, ताकि उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, बिकॉज वी ब्रॉट हिम फॉर द राइट रीज़न. तो यहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ कंपेयर इसलिए ना करें क्योंकि ये पिचेस और हैं, वेस्ट इंडीज़ में आपको टोटली डिफरेंट पिचेस मिल रही हैं. फेयर कॉल. दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद के लिए मुझे ग्रे एरिया उनकी फास्ट बॉलिंग नज़र आ रही है. ओके. इनकी फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह इज़ देयर इम्पैक्ट बॉलर, लेकिन वो इंजरी से वापस आ रहे हैं. पिछले मैच में भी ही डिड वेल, बट ही स्टिल नॉट उस फॉर्म में नहीं है. वो विकेट नजर आ रहा हमें बिल्कुल. जो हुनैन शाह खेले, वो उबैद शाह, वो एक ओवर के बाद नहीं करवाया. तामिल मिल कुडंट बोल वेल. तो इनकी स्पिन जो पेयर है, जो इमाद और शादाब, उनका इम्पैक्ट तो आया, लेकिन फास्ट बॉलिंग टू मी इज़ अ कंसर्निंग एरिया. अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ मुल्तान सुल्तान पे, तो उनके पास जो वेरिएशन है अब्बास अफरीदी के शक्ल में, जिस तरह वो राइट यूटिलाइज करते हैं अपने बॉलर को. मोहम्मद अली, वी ऑल वर थिंकिंग कि ही इज़ अ रेड बॉल बॉलर, लेकिन उसने कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया. रिजवान डिड वेरी वेल. उनकी मैनेजमेंट पीछे बैठ के राइटली एड्रेस कर रही है चीज़ों को, कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को राइट वे में एड्रेस करते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेज अच्छी आती हैं. Alright, with that, let's take a look at the numbers game brought to you by Sting. राइट जनाब, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हम आजम खान की पावर हिटिंग इन द लास्ट 5 ओवर्स जो हैं वो देख रहे हैं इन T20s 2022 से. ये याद रहे कि सिंस 2022 नाउ ही इज गॉट 645 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 26.87, बट लुक एट दैट स्ट्राइक रेट 197.24. Outstanding. 51 sixes there. 26-27 की एवरेज अगर आप 200 के strike, this almost 200 का आपका वो है strike rate. That's something phenomenal. This actually. is definitely phenomenal. But you know that two schools of thoughts on his selection. And I mean, we all discussed it before. You see, there's a saying in English, if you look the part, you'll get the part. He's a multi-talented, we all know. उसने मनवाया है, ये नहीं कि किसी का जानने वाला है या बेटा है, उसने मनवाया है पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस करके. But when you appearance wise आप देखते हो तो lot of criticism होता है उस पर, और मेरे ख्याल में this day and age हमारे टाइम पे शायद चल जाता था ये, बट आजकल चलना थोड़ा मुश्किल है. I suppose, I don't know what you say, you were with him for a month or All right, that was the numbers game brought to you by Sting. So Wasim, you had a point that you look the part, you get the part, and आपने कहा Hafiz, in your plans Azam fits for the number 6 position. For the number 6 numbers as well. अभी numbers yeah, and his stats also अच्छा, speak. इसमें ये है कि वो इंटरनेशनली कामयाब नहीं हुआ. उसके आज अभी तक कुछ 9 या 10 मैच हैं और उसकी 4.5 या 5 की एवरेज है. Okay. He couldn't bring that
stats into international cricket, which I understand and even everyone will understand who played this game for a longer period of time. Sometime आपको adjust करने में time लगता है, and that was the reason we brought him in कि यार हम उसको एक long run देंगे till World Cup, उसको clarity दी है कि you are not going anywhere. आपने यहाँ हमने न्यूजीलैंड में खिलाना मैच आमतौर पर उसको ज़्यादा मैच खिलाना चाहिए, लेकिन 3 मैचेस के बाद वी थॉट दैट ही इज़ नॉट डूइंग वेल, ताकि उसका कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड ना हो जाए कि वो दोबारा उसको कम बैक ना कर सके, क्योंकि आपको पता नाउडेज सोशल मीडिया फौरी एक परफॉर्मेंस के बाद आपके पास आ जाता है। प्लान ये हुआ था कि हम उसको खिलाएंगे, उसको पूरा एक रन देंगे, वर्ल्ड कप तक ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो यहाँ पे अगर उसको 3-4 मैच मिले हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है जब अप्रैल में, फिर हमने इंग्लैंड जाना है, तो ही विल गेट दोज 10 to 15 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप। सॉरी, विल ही दो? आई थिंक ही शुड, should. क्योंकि अगर आप नहीं देते तो आप अपना प्लान जो सेट किया आप उससे दूर जा रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि इससे पहले खुशदिल और आसिफ आप आजमा चुके हैं। Yeah. हैदर अली इज़ नॉट डूइंग दैट थिंग्स राइट एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली। आपके पास ऑप्शंस नहीं थी नंबर 5 और नंबर 6 पे, इसलिए इफ्तिखार अहमद इज़ बैटिंग है नंबर 5। मैंने बात की उसके साथ, फ़कर के साथ, यू सेट योर सेल्फ एट नंबर 4 पोजीशन, क्योंकि पहले 3 सॉर्टेड हैं, बाबर, रिजवान इज़ देयर, एंड आई पर्सनली वांटेड विद टू हैविंग अ राइट कॉम्पोजिशन फॉर द टीम, क्योंकि सिर्फ टीम 2 प्लेयर नहीं होते या 3 प्लेयर नहीं होते, टीम 15 की होती है। तो हमने 15 प्लेयर रेडी करने के लिए कुछ लोगों को एडजस्ट करना था, जिसमें फ़कर को 4 का हमने रोल दिया, एंड ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड नॉट टू बैट एज एन ओपनर, एंड आई थॉट इट्स द बेस्ट टाइम फॉर हिम कि वो जो उसकी एक फ्लेयर है, और फिर वो लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से जो लेफ्ट आर्म स्पिन आती है, जो ब्रेक करता है आपको मैच है, वो बड़ा अच्छा सेटअप होता है, और उसके अलावा आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था ही नहीं। तो आई थिंक दैट ऑल्सो गिव यू दैट ऑप्शन कि अगर आज़म नंबर 6 पे खेले। दूसरी एक चीज़ जो हमने की थी कि आज़म विल नॉट फील्ड बिकॉज ही कैन नॉट फील्ड अनफॉर्चुनेटली, लाइक जो भी उसकी बॉडी पोजीशन है उसको कीपर के तौर पर खिलाया जा सकता है, जिसमें मैंने रिजवान से बात की एंड ही अंडरस्टूड दैट थिंग कि पाकिस्तान के लिए अगर हम उसकी कीपिंग को फील्डिंग में यूटिलाइज कर लें, बिकॉज ही इज़ अ गुड फील्डर, ही कैन मूव अराउंड। तो हमने ये सारा पैकेज अकॉर्डिंगली सेट किया था। अब मुझे नहीं पता नई मैनेजमेंट आती है वो क्या सोचती है, बट वी होप दैट जो एक माइंडसेट लेके चला गया, जिसके मुताबिक हमने एक सीरीज़ खेली, अगर उसको कंटिन्यू किया जाए तो इट विल बी अ गुड डिसीजन। प्लेयर, अच्छा देयर इज अनदर क्वेश्चन राजेश, इससे अजहर और आपसे क्वेश्चन है, इससे प्लेयर जिसको आपने जैसे हफीज़ क्रिकेट डायरेक्टर कोच भी थे, इसने कहा कि तुम्हें हमें लॉन्ग टर्म का प्लान दे रहे हैं, ये हमारा प्लान है, तुम्हें यहाँ मौका मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द टूर हफीज़ गेट्स अ सैक, और वो जो खिलाड़ी है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर नहीं होगा कि जिस बंदे ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, ही इज नो मोर। ये जो सारी अनसर्टेनिटी है वो इसी वजह से है। बिल्कुल, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी जब कप्तान बना था तो हमने एक चीज़ बनाई थी कि हमने बैक करना है, हमने एक स्टाइल चेंज करना है, फिर बैक करना है। फिर इन दी एंड जब टीम अनाउंस होती है ना अगली, और आपके 2 प्लेयर वो जिसको आपने कंधे पे हाथ रख के बोला होता है यार वी विल बैक यू, प्ले दिस वे, अब उसमें फेलियर आते हैं, तो देन व्हेन ही कम वो टीम से एग्जिट होता है ना, फिर अगली दफ़ा कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करता, कप्तान भी साइड पे होता है, कोच भी साइड पे होता है, क्योंकि फिर कहता है यार कोई बचाने वाला तो हमें है नहीं। तो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर इशू। और ऑल्सो मेरा एक छोटा सा सवाल है, और ये ओपिनियन भी समझ लें कि अगर विकेट्स वहाँ पे थोड़ी सी टफ होंगी तो क्या नए बॉल पे हमारे एग्रेसर ऊपर जाने चाहिए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में, क्योंकि आपको वही जब बॉल हार्ड है, फॉर इंस्टेंस लाइक फ़खर जमान should open where, क्योंकि नए बॉल का जितना फायदा एक्चुअली अजहर दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट हम ये सोच रहे थे एंड आई हैड अ डिस्कशन विद इमरान एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन थिंग इज वेल कि इस HBL PSL के थ्रू आउट सीजन में स्टार्टिंग 1-2 मैचेस और गुजरने के बाद, बल्कि अभी आपके वापसी के बाद, वी शुड स्टार्ट a selection process. Each one of you creates your own team. ठीक है ना, and then we can at the end of the HBL for the World Cup, looking at the performances and looking at what is going on and everything, and then we can compare it. Final से पहले जो है हम उसको compare कर सकें और देख सकें कि what are the ideas, and we can have a very good discussion towards the semi-final playoffs and constructive only. Constructive, that's the whole idea. We always believe in that. Talking about different positions and all that and everything, Shadab has been a very important factor for the Pakistan cricket team and for Islamabad United. He's been leading them really well. और पिछले मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की मिसबा। बैटिंग का तो मुझे इतना नहीं उसका लग रहा, मुझे जो खुशी हुई है जो उसकी बॉलिंग अच्छी हुई है, वो हमें चाहिए, ऑलराउंडर तो चाहिए, एक तो वो गन फील्डर है, बट जब वो बॉलिंग अच्छी करता है उसकी बैटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो ही बोल्ड वेरी वेल, 4 ओवरों में इसने सिर्फ 24 रन दिए हैं और 1 आउट भी किया उसके बाद,
सो आई थिंक इससे फ़र्क पड़ेगा इसको एज अ बॉलर, एज अ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा इसका मिसबा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है आपको, यही फ़ायदा है आप अगर दोनों चीज़ें करते हैं कि एक में परफॉर्मेंस होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है, क्योंकि गेम ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आप थोड़ा सा भी शादाब को बॉलिंग करते हुए देखें तो जब ये एशिया कप और वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे थे तो इनका हाथ ये जो फ्रंट आर्म है ये यहाँ पे जा रहा जी था हाँ। मिड विकेट साइड पे, Okay. अभी वापस जा रहा है। दैट वाज द टेक्निकल इशू ही वाज फेसिंग कि जब इसका हाथ यहाँ जा रहा था ही वाज pivot नहीं थी हो रही। ही वाज नॉट हिटिंग द लेंथ राइटली, Correct. क्योंकि इसकी जो लाइन ये सोचता था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं Execute हुआ। सारा off लेकिन stump के जैसे बाहर बॉडी डाल अलाइनमेंट ठीक हुई है ऑटोमेटिक लाइक ही वर्कड हार्ड। जी हाँ, वो नजर आ रहा है इसको उनका। एक प्लान दिया गया जब ये हमारे पास आए थे तो इनको एक प्लान बताया गया कि दिस इज़ द इशू यू आर फेसिंग एट द मोमेंट, यू नीड टू वर्क ऑन दोज स्मॉल एरियाज जो आपकी गेम को आपसे दूर कर देते हैं। तो आई थिंक ही वर्कड ऑन इट और अभी आप अगर देखें तो इज हिटिंग द राइट एरिया कंसिस्टेंटली। यू नो मिसबा, ये पॉइंट मुझे याद है वर्ल्ड कप के दौरान आप जब चूंकि हम लोग बड़े वरीड थे शादाब की परफॉर्मेंस से, एंड देन उनको कंकशन हुआ या ड्रॉप भी किया गया, वो किया, बट यू वर कंसिस्टेंटली सेइंग ही इज नॉट फिनिशिंग विद इन द स्टंप्स एंड दैट इज गिविंग, यू नो, ही इज गिविंग अवे टू मेनी रन्स, लीकिंग टू मेनी देखिए रन्स। वो जो हफीज़ बात कर रहे हैं ना कि ये जो आपका लेफ्ट आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म, बॉलर्स जो हैं, मैं तो खैर बॉलर नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही एक हाथ से बॉलिंग कराता हूँ, लेकिन ये आपका बेसिकली टूवर्ड्स द टारगेट होता है, ये बेसिकली पॉइंट करता है जब आप थ्रो करते हैं, और ये अगर जल्दी इधर को जा रहा है इट मीन्स ऑटोमेटिकली बॉल उधर को ही जाएगा, और ये लेटरल फ्लेक्शन जो हम कहते हैं, बॉडी भी इधर गिर जाएगी, बॉल स्टंप में फिनिश नहीं हो सकता। ये जब टूवर्ड्स द टारगेट होगा और यहाँ से आप पुल करके यहाँ आएगा बाजू आपका, तो देन यू विल बी एबल टू हिट द स्टंप्स, सामने आप बॉल कर सकेंगे, जान भी ज़्यादा देना चाहूँगा शादाब को भी किसने अंडरस्टूड किया, जो सैयद अजमल जो स्पिन बॉलिंग कोच हम लेके आए थे, उन्होंने इनके साथ 4-5 दिन काम करके इनको राइट एरिया बताया, प्लान दिया। आई एम श्योर ही मस्ट हैव वर्कड ऑन दिस। इनको खुद रियलाइज़ था कि मैं रियलाइज़ किया उन्होंने कि मैं मुश्किल में हूँ, इस वक्त नहीं समझ आ रही, समझाया गया। आई थिंक ही वर्कड ऑन दिस। और अभी अगर हम पहले मैच में देखें तो सो फार हिज बॉडी इज इन अलाइन और इसका जो राइट एरिया वो कंसिस्टेंटली जो है हिट हो राइट, फिनिशिंग विद इन स्टंप्स। यस प्लीज। एज ए लेग स्पिनर मैंने भी थोड़ी सी आप की है, तो थोड़ी सी नहीं, उसमें आपने मैं इसको कई दफ़ा मैसेज भी करता हूँ। एक तो ये आपका बाजू टूटना नहीं चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि जब आपका बाजू जल्दी टूट जाता है तो आपकी डायरेक्शन फिर ख़राब होती है। Why don't you take this ball, वो- खड़े हो जाए और उधर आ जाए ताकि आपके पूरा नहीं, आप पूरे डेमो दे सके ना। लॉट ऑफ यंग पीपल would be able to just come down here, come down here, just come down here। इतना वो बोल रहे थे आपने उनको नहीं पकड़ाई। नहीं तो लेग स्पिनर है, आप लेग स्पिनर है ना, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना। और ये जो जिप वाला कैमरा है आपके Okay. सामने, लेकिन इसके पहले अंदर माफी इधर 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 मांगनी इधर है, क्योंकि लोगों ने राइट तो कहना है कि यार है, एंड leg spinner ये आप जिप वाला नहीं कैमरा, जिप वाला कैमरा, इसके अंदर आपने बताना है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप लेग स्पिनर अपनी स्ट्राइड में आता है तो अक्सर आप लेग स्पिनर देखते हैं तो उनका हाथ बहुत जल्दी खुल जाता है, तो उससे आपकी डायरेक्शन और लेंथ कंट्रोल में नहीं रहती, जिस तरह पहले बात हो रही थी। तो आपने बॉल को एक तो इसको टूटने नहीं देना और इसको स्टंप्स की लाइन में रखना, ताकि आपकी टूटना बेसिकली आप जल्दी इसको रिलीज़ कर देते हैं, तो उसके बाद आपका एक ये बॉलिंग आर्म ही रह जाता है और उसके बाद फिर आप के कंट्रोल नहीं रहता। और उसके बाद दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, शादाब के केस में भी है कि वो सम टाइम क्रीज पे बहुत ज़्यादा हरी करता है, तो उसकी वजह से भी इसकी लेंथ और लाइन में फ़र्क होता है। और हमें जब भी हम यंगस्टर एज ए जितनी कोचिंग हमें मिली थी उसमें ये था कि क्रीज के ऊपर टाइम गुजारना, मतलब कि पॉज थोड़ा सा देना ज़रूरी है, जिससे आपके ज़ोर लगता है। फिर अगर आप बहुत जल्दी हरी में जाते हैं तो आपकी उसमें भी लेंथ और लाइन में एक फ़र्क पूरा और ये action तभी करके, होता है अगर आप एक पूरा एक्शन करके एक पूरा फॉलो थ्रू के साथ दिखा दें, सो इट वुड बी रियली आप नाइस। क्या चाह रहे हैं? एक पूरा एक्शन करके दिखा दें, सो लॉट ऑफ यंग पीपल आर वाचिंग यू। आई थिंक वो उसके अंदर यही है कि जब आप प्रेशर में होते हैं तो सबसे ज़्यादा तभी आप जल्दी में बॉल करते हैं। तो आपका कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना कंपोज आएँ, रिलैक्स होके, और ये पूरा पिवट आपको मिलता है, फिर अप एंड ओवर जाता है। और जितना आप इसको कोशिश करें कि होल्ड कर सकें ऑन द क्रीज अपने पूरे एक्शन को, उतना ही आपकी डायरेक्शन और लेंस कंट्रोल में रहेंगी। Yeah, that was really well done. Thank you very much with that. And you're watching The Pavilion on Ace Sports, our continued coverage of the HPL PSL Season 9. We're going to take a break. See you on the other side.
वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9 मैच नंबर 5 कमिंग एट यू शॉर्टली। मुल्तान से बराह रास्त आपकी खिदमत में मुल्तान सुल्तान्स बा मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान की बॉलिंग के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। पहले मैच के अंदर उन्होंने अजहर बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और थोड़ी सी जो उनका आई थिंक माइंडसेट, क्योंकि पहले शादाब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते थे ना, पहले 2-3 जो पीएसएल में कप्तान हुए, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी था कि हम इस तरह खेलेंगे, आप इस तरह खेलते हैं तो फिर रिजल्ट सम टाइम ऊपर नीचे होते हैं। तो आई थिंक इसकी बैटिंग में मेथड भी नज़र आया और एग्रेशन तो था लेकिन मेथड भी था। और आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स, बैलेंस बहुत अच्छा था क्रीज के ऊपर, बैट स्विंग बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात है एक जगह टारगेट नहीं कर रहे थे, फील्ड पिच के चारों तरफ जो है वो शॉट्स खेल रहे थे। दैट इज़ वेयर व्हेन यू प्ले लाइक दैट यू गेट मोर सक्सेसफुल और फिर आपको इजी बॉल्स भी इस तरह के फिर मिलते हैं। मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ कि मुझे ज़्यादा तौर पे इसके जो बैटिंग स्किल्स हैं ना वो अंडर यूटिलाइज हैं T20। इसको हमेशा 6 और 7 पे फेंका गया। हमारा जो प्लान था, जो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड थे, वी वांटेड हिम टू बैट नंबर 4 नंबर 5, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सेट हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान टीम को बहुत राइट कंपोजिशन मिलता है। इनकी बैटिंग के जो टैलेंट है वो ऐसा है कि ही कैन मैनेज हिमसेल्फ इन T20 एज अ वेरी गुड T20 बैट्समैन। और फिर इनकी बॉलिंग का जो प्रेशर है इनसे दूर होगा कि इन्होंने लाजमी नहीं कि हर मैच में 4 ओवर ही करने हैं, ये 2 और 3 ओवर भी अगर करें और साथ में नंबर 4-5 की बैटिंग करे, ही इज गुड टू गो। तो आई थिंक दैट नंबर ऊपर बहुत जबरदस्त बैटिंग करता है। नंबर 3-4 पे आए, नंबर 6 200 कर रहे थे, 195 और 3 पे आया खुद। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वसीम भाई कि हर किस्म के बॉलर को अच्छा खेलता है, मिस्ट्री स्पिनर को भी अच्छा खेलता है, इनसाइड आउट खेलता है, स्लॉग स्वीप मारता है, सामने भी शॉटें अच्छी हैं। फिर फास्ट बॉलर्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अच्छी क्रिकेट में, जो हफीज़ हमेशा कहता है और सारे कहते हैं कि पहला सवाल शॉर्ट बॉल है। शॉर्ट बॉल पेस, जब रियल पेस आती है तो उसको आप स्केयर ऑफ द विकेट आपको खेलना आता है और वो इसको आता है। इवन अगर इनसाइड आउट अगेंस्ट द फास्टर बॉलर्स मिड ऑफ ऊपर होती है, वो बहुत अच्छी खेलता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें उसमें हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट ज़बरदस्त है। ही गॉट ऑल द एट्रीब्यूट्स के जो एक अच्छे बैट्समैन। ये मुझे हमेशा वो आता है जैसे शुएब मलिक जब आए तो ऑफ स्पिनर थे, लेकिन बाद में फिर वो एक प्रॉपर बैट्समैन, क्योंकि उनके बेसिक्स ऑफ द गेम उनके पास थी, उन्होंने मेहनत की तो वो जैसे डेवलप हुए हैं। अजहर अली जब आए तो लेग स्पिनर थे, फिर इन्होंने मेहनत की अपनी बैटिंग के अंदर तो ये डेवलप कर गए एज ए बैट्समैन। तो इनमें भी वो क्वालिटी है कि बैटिंग। स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केम एज अ लेग स्पिनर, बैट्समैन मेन खेला टेस्ट क्रिकेट एज डेब्यू एज अ लेग स्पिनर किया था, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में उसकी आई थिंक 50 और इसमें ये क्वालिटी है कि इसकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम एज ए बैट्समैन वो बड़ी बेहतर है, बेस बहुत अच्छी है। मज़ीद थोड़ी मेहनत की जाए और इनको मज़ीद मौके दिए जाएँ टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बैटिंग की जो मिडिल ऑर्डर के इशू है वो काफ़ी हद तक ये मैनेज। T20 में हम क्यों बात करते हैं कि उसका माइंडसेट बड़ा, उसकी क्लैरिटी है, वो बिल्कुल उसका एज ए बैट्समैन एग्रेसिव माइंडसेट है कि ही लुक टू स्कोर रन्स और उसका यही होता है जाते ही कि मैंने कहाँ से रन्स निकालने हैं, बाउंड्री कहाँ है मेरी ऑप्शन। तो आइडियली सूटेड फॉर T20 क्रिकेट के नंबर 3 या 4 वहाँ पे जाए और उसको कैपिटलाइज करे। वसीम, when you spotted शोएब मलिक ऑफ स्पिन की बॉलिंग की बात कर रहे थे, आपने PIA के मैच में उनको स्पॉट किया था and that's where you picked him up. At that time you already had a great off spinner in the shape of Saqlain Mushtaq, right? Saqlain को भी PIA मैच पे ही देखा था मैंने। अच्छा, so both this off spinners, how as a lefty and a left hand fast bowler, how is it, what impressed you immediately for both these off spinners? क्या चीज़ थी कि आपको? Saqlain ने जो मुझे बताया गया जब मैं आया PIA पाकिस्तान से खेल के, ब्रेक था तो आई थिंक विल्स कप था या फर्स्ट क्लास मैच था, सो आई वेंट टू प्ले एंड आई थिंक कप्तान मैं ही होता था PIA का, जब मैं नहीं था होता तो आसिम मुश्तबा, शोएब मोहम्मद, ऑल दीज गाइज वर रनिंग द टीम, दे वर डूइंग क्वाइट वेल एज वेल। तो जब मैं आया तो मैंने देखा तो उन्होंने कहा जी एक नया बॉलर आया, दूसरा करता है। हमने मैं कहा दूसरा क्यों होता है यार, वर्ड्स दूसरा अच्छा ऑफ ब्रेक सुना है, वो ये सुना जो उसके साथ निकाल साइड वाला, दूसरे का मतलब क्या होता है। मैंने कहा करके दिखाओ, उसने करके दिखाया। मैं बैटिंग नेट में एक दिन पहले की तो वो मैं निकलूँ से इनसाइड आउट मारने नेट में, वो अंदर से बॉल चला जाए और तेज़ और बाउंस के साथ। वो मैंने क्रिकेट मुझे आई थिंक 10-12 साल खेलते हुए, तो काउंटी भी 6 साल से देखा नहीं था ऐसा मैंने, ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई किसी भी लेवल पे इस तरह का टैलेंट और इस तरह का गेंद नहीं था देखा। तो किसी ने जिसने ईजाद किया वो गेंद वो सकलैन मुश्ताक ही था। आई मीन मैंने देखा है दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन बैट्समैन, बड़े बड़े नाम, वो इसको निकले
छिका मारने, वो निकल के वहीं रह गए, उन्हें पता भी नहीं बॉल कहाँ Ball कहाँ गया। गया, स्टंप हो गए. You know, that was incredible. Even great Muralidharan, Yeah. he mentioned his name कि उन्होंने इनसे बात करके when he saw him तो उनको रियलाइज हुआ कि ये एक नई चीज़ आई है एंड देन ही लर्न दैट आर्ट फ्रॉम सकलैन भाई. और जो सकलैन और शुएब, हाँ? सकलैन भाई ने आया चंगी नहीं की थी. शुएब पहले थोड़ा मुश्किल था, वो ऊपर से उसको दूसरे पे लगाती है मुरली को बता के. मैं And शोएब मलिक पे क्या था? शोएब So that- मलिक भी सेम, आई थिंक यहाँ मैच था मे बी DHA जो अब साउथ एंड है, जी, तो South End वहाँ Club, पे जी, पहले जी, क्रिकेट जी. मैचेस भी, टेस्ट मैच भी हुआ वहाँ पे. Right. सो वहाँ पे विल्स कप का मैच था, तो ये लड़का रखा टैलेंट, आई थिंक हमारे अकील राशिद खान, ऑल दीज गाइज. Right. PIA में अकील जस्ट पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 months ago. Right. बट दीज गाइज ने ये लड़के ढूंढ के लाते थे. Yeah. ये लेके आया, मैंने देखा फील्डिंग बड़ी तेज, छोटा सा था, 17 साल का होगा, फील्डिंग तेज कर रहा है, फिर बॉलिंग करने आया. उसके पास दूसरा भी था बट नॉट एज इफेक्टिव Right. एज सकलैन, बट था ज़रूर. तो आई थिंक उसके फ़ौरन बाद में उसको शारजा ले गया, नेवर लुक्ड बैक. Wow, what a two discoveries, outstanding. And in off-spin bowling, one would expect कि भाई वसीम भाई हैं, वो कोई खब्बा ढूंढेंगे, तेज बॉलर ढूंढेंगे. You know, that's really very interesting. वसीम मैंने लेग स्पिनर इसलिए ना ढूंढा कि लेग स्पिनर इंडियन बैट्समैन ही बनता. एक लेग स्पिनर नहीं बैट्समैन बने हैं. मुश्ताक है. वो नहीं, मुशी वो में बैट्समैन वो बड़े ने, लेकिन वो मसला बैट्समैन कोई नहीं, वो याद कराते हैं हर बारी नहीं, वो बैट करें कहते थे, हमें भी उसने 15 साल यही कह पाए मैंने ओपन करना सा. हाँ. मैं की करना से किथे करना से उन्हें सा वो इसका प्राइड लेते हैं कि इंजी भाई से पहले क्लब लेवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਅਡਲੀਅਟ ਖੇਡਿਆ आई वाज अहेड ऑफ हिम. मैं तो पहले जाना था है ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक स्पेशल गल I think वो टीम में जब आया ना तो उसको हमने नेट में बाउंसर कर करके उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक बिल्कुल हो गया. ये वो कहते हैं यार मैं बैट्समैन सब तो बड़ा सा पर मैं इथों कमजोर सा. वो एक दफा वाकया दिल से कमजोर था मैं. वाकया सुनाते होते हैं अक्सर वो कि वो इंजी भाई खेल रहे 90 समथिंग पे ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ पेशावर टेस्ट मैच हो रहा था. तो मुशी भाई लास्ट मैन आए, इतने बड़े बैट्समैन थे. तो अब वो कर्टली इमरोज कह रहे हैं एक मिनट मुशी भाई, अगर आप सुन रहे किसी हैं भाई का फोन आ रहा है. जरा दोबारा ये क्लिप मैं प्रोडक्शन, ये क्लिप जरा जरूर निकाल दीजिएगा. ये क्लिप जो है वो वसीम जो है वो मुशी भाई को व्हाट्सएप करेंगे जरा याद से. तो इतने बड़े वो बैट्समैन थे, क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलिएगा. इतने बड़े 11 नंबर पे आए थे. लास्ट विकेट थी और वो इमरोज की मैं 2 बॉलें खेलनी थी आखिरी, जैसे होता है. तो बहुत शायद इमरोज था, पता नहीं. तो वो भागना शुरू हुआ तो इंजी भाई ने जाके ग्लव्स मार के कहा मुशी अगे करेगा. तो कहना हाँ कोई मसला नहीं, मैं खेल लाँगा 2 कहना कोई मसला नहीं. तो कहते हैं वो भागना शुरू हुआ है, इंजी ने एक दफ़ा फिर आवाज़ लगाई है आगे करेगा. तो मुझे भी कहते हैं हाँ ठीक है. तो कहते हैं मैं बड़े कॉन्फिडेंट खड़ा हूँ कि आगे करेगा. तो करते करते कहता है जब जंप लेने लगा ना मेरे दिल में नहीं पीछे करेगा. उसने आगे यॉर्कर किया, मुशी भाई पीछे गुजरा, आउट हो गया. हुआ ये ना, उसने आगे किया, मुशी भाई बोल्ड हो गए. तो मुशी भाई उस एंड पे थे जो ड्रेसिंग रूम से करीब था. तो मुशी भाई ने पीछे देखा भी नहीं, इंजी भाई सुना रहे दौड़ लाती. इन्होंने मुड़े और जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया. मैं इसके पीछे तेज से मुश आवाज नहीं सुन रहा. मैं दौड़ के इसको पकड़ा, मैंने कहा तुम्हें मैंने कहा था यॉर्कर करेगा, तुमने ये क्या किया. कहता है अल्लाह दी कसम है इंजी, मैं यॉर्कर ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, लेकिन जो तो तेज दौड़िया ना मैं क्या ने बाउंसर. It's a valid tail ender psyche. No, but he says कि he used to open under 19. How is that a tail हमें ender भी ये cricket? कहता रहा है. नहीं गलती से भी बड़ी सुनी है लेकिन समझ भी नहीं आई. MSL में नंबर 3 पे आ गया ना वो. हाँ, ऐसे नंबर 3 पे आया, 1-2 बॉल लाला ने खेला bouncer तो राणा ने ना, राणा बॉलिंग कर रहा था छोटे से, उसने हल्का सा ऐसे तुनका दिया ना, तो वो बॉल भी है लेकर वाला बॉल, तो ऐसे निकला ना यूं ऐसे हुआ. बस वो आखिरी नंबर 3 थोड़ी सी रिकवरी कर लें. जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी जहां पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया के नहीं होनी. Too late. नहीं, तेरा ये वाला क्लिप तो काटेंगे हम वहाँ से. एक गाल चली गई. हाँ, अब बात निकल गई है. अब तो अब तीर कमान नहीं, से मैं ये जा कहता चुके हूँ, हैं. मुशी भाई एंजॉय करेंगे. नहीं मैं तो ये भी मैंने मजाक ही किया. और ये कैसे कवर कर रहा है बेचारा अजहर अली कवरिंग. और डैमेज कंट्रोल बाय अजहर अली गोइंग ऑन. Azhar, too late for that. Let's talk about another all-rounder in Islamabad United, Wasim, who's played with you when you were in the dugout for Karachi Kings. That's Imad Wasim. Imad Wasim also looking good with his bowling in the last game. Yeah, I think so. Imad bowled well. 33 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिली उसको, but yeah, experience है यार. He does this for living, play leagues all over the world.
और आई थिंक इसको मेरे ख्याल में एक नए ओवर से बॉल कराना चाहिए था फ़खर के ख़िलाफ़, वही हम बात कर रहे थे मैं और मिसबा। और ये खब्बे को भी उतना ही तंग करता है, इसको एज अ बॉलर कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि खब्बे का ये नहीं मतलब कि मैचअप नहीं है भी तुम दुनिया के टॉप 3 बॉलर, इतना एक्सपीरियंस है, इतना ज़बरदस्त वो अकील हुसैन जैसे गेंद करता है, ये भी करता है वो, तो खब्बे का चांस है पहले 6 ओवर में आउट होने का, और नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करता है। मुल्तान की कंडीशंस भी आई थिंक थोड़ा सा स्पिन को ज़्यादा लास्ट पिच हमने देखी थी, या so yeah, I mean he is a very good cricketer to have you in the team. He's a fighter, no doubt. Yeah, and seems like that his batting. एक चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जो बार बार देखिए, मुझे लगता है जो साइकी ज़्यादातर मुझे PSL में नज़र आ रही है, सारी टीम्स की सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ बॉलर लगा रहे हैं। ऐसे नहीं है T20 क्रिकेट में, आपने थोड़ा सा गैम्बल करना है ऐसे बॉलर पे कि यार ये विकेट ले लेगा, अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने है, ले चांस आते ही अगर लेता है पहले ही ओवर में, यू ऑलवेज हैव द चांस टू गेट विकेट। आपका मैच का क्या कर लेगा, 2 या 3 बाउंड्रीज वो तो सबको लग रही हैं, बट आपको कोशिश करनी है। आप देखें कि विकेटें अगर आप नहीं ले रहे हैं ना, कोई बॉलर नहीं बच रहा आपका। ये बॉलर्स की आपने बात की, takes me to a different topic, slightly away. But Wasim, I'm going to bring this question to you. All right. Lahore Qalandars definitely struggling with their bowling, but that also means Pakistan has also been struggling with their bowling, starting from Asia Cup, going into the India series, going to Australia. वो खैर हमारे वो वाले बॉलर नहीं थे, but now we're worried because you've got the World Cup coming up. एशिया कप 50 ओवर का था जी, वनडे 50 ओवर का था। बिल्कुल। दैट्स अ मैसिव डिफरेंस। I वो मुझे agree. पहले ही पता था कि पाकिस्तान टीम से परफॉर्मेंस नहीं होनी, I agree. फिटनेस लेवल से। T20 में दे भी ओके, वो ये T20 में हर एक को मार पड़ती है, ठीक है, दैट्स सही है। ओके। So we shouldn't be that concerned. नहीं, और जो पिचेस हैं वेस्ट इंडीज़ की, वो इतनी फ्लैट नहीं जितनी पाकिस्तान की है। आप पिचेस प्रॉब्ली आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर बैटर्स, स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। but I've seen a lot of spin wickets in Caribbean. वही आपने भी एक मेंशन की चीज़ कि आपको ये जज हो रहा था या आप अज्यूम कर रहे थे कि दे कुडंट डू वेल Yeah. क्योंकि इनकी फिटनेस ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, वहाँ पे जाके मैंने तमाम प्लेयर्स को एक फ़िटनेस के मुतल्लिक उनको कहा कि आपने फ़िटनेस के मुतल्लिक ध्यान देना है। मैंने ट्रेनर को बोला कि आप मुझे बताएं कि फ़िटनेस के क्या इनके स्टैंडर्ड्स हैं। एक शॉकिंग किस्म की उसने मेरे साथ बात की, कहता है कि जी 6 महीने पहले टीम डायरेक्टर, हेड कोच और कप्तान ने हमसे मुझे ये कहा कि फ़िटनेस इज़ नॉट द प्रायोरिटी एट द मोमेंट, और आपने फ़िटनेस चेक नहीं करनी इन प्लेयरों की। लेट देम प्ले द क्रिकेट द वे दे वांटेड टू। हुआ ये कि जब 6 माह के बाद जब मैंने इनको ऑब्जर्व किया, तो फैट लेवल जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंटरनेशनल फैट लेवल क्या होता है लोगों को बता दें। चर्बी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो आप खाना इंटेक करते हैं, आपका स्किन फोल्ड लिया जाता है, जिससे ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ हो ही नहीं सकता पाइन माजरत। नहीं मेरा तो बहुत अच्छा है फैट लेवल, स्किन फोल्ड मीटर टूट जाएगा ना, वो नंबर नहीं आएंगे, बाउंड्री रोप से होता है। तो वो जो स्किन फोल्ड है, जब वो किया गया तो पता लगा कि सारे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलने हमारे पास आए हैं, वो अपने स्किन फोल्ड से जो एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से 1.5 गुना 1.25 गुना ऊपर जा चुकी हैं। That's a lot. बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो एक आपका स्टेमिना चेक करने के लिए 2 किलोमीटर ट्रायल आपका लिया जाता है। सम ऑफ द प्लेयर्स कुडंट फिनिश दोस 2 किलोमीटर रन, एंड दैट वाज शॉकिंग टू मी कि आप कैसे ये किया। मुझे वजह पता लगी कि 6 माह बाद पहले एक ऐसा डिसीजन लिया गया था जिसने इस सारे क्राइटेरिया को खत्म कर दिया था। लोड मैनेजमेंट करनी होगी शायद, इस वजह से नहीं चाह रहे थे। नहीं, कप्तान ने भी कह रहे हैं, कप्तान भी साथ था, क्रिकेट डायरेक्टर भी था, ब्रेडमैन कोच था, क्रिकेट डिसाइड किया है। तो आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस को अलग कर सकते हैं? जब आप ये करेंगे तो रिजल्ट आपके ऐसे आने हैं। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो आपको याद होगा एक प्लेयर को फिटनेस टेस्ट पास ना करने पे वापस भेजा गया था। हम वो ट्रॉफी जीते, उस टाइम पे फिटनेस के ऊपर बहुत जोर था। उसके बाद अभी रिसेंटली आप लोगों को एबटाबाद भी भेजा गया था वो सीरीज से पहले साल पहले, लेकिन उसके बाद जो कल्चर था ना टीम का, आई थिंक मुझे याद है वसीम भाई भी लॉर्ड्स में आए थे जब हम टेस्ट मैच जीते थे, तो हमको देख के कहते हैं यार क्या बात है, क्या लग रहे हो तुम लोग सारे जनरली, मतलब मेरी बेस्ट फिटनेस थी। सेम बंदा इस मर्तबा कैसे उसने 6 माह पहले ये वाली चीज़ ख़त्म की। वहाँ पे भी मिक्की आतर थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, विच ही डिड द राइट थिंग। कैसे 6 माह पहले उन्होंने ये फैसला ले लिया कि इस वक्त पाकिस्तान को फिटनेस की ज़रूरत नहीं है और प्लेयरों को फिटनेस चेक नहीं किया जाए। और इसके अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ कि अभी रिसेंटली युवराज सिंह का इंटरव्यू हुआ है, फिटनेस
के मैच उसने कहा कि सारे फिट टीम है और ये उसने मेंशन किया स्पेशल चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, कहते हैं पाकिस्तान की टीम वो बड़ी फिट थी। तो इट मींस कि व्हेन यू पे अटेंशन टू इट और सारे ये चीज़ें कल्चर आपको पुश देती हैं। आपके क्रिकेटिंग टैलेंट चाहे वो बैटिंग का है या बॉलिंग का है, वो एक जगह पे रुक जाता है और आपकी फिटनेस आपको ड्राइव करती है। माय क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आता है राइजेस के, ठीक है फिटनेस टेस्ट नहीं लिया बट एक इंडिविजुअल की अपनी भी तो कोई है ना, मैंने भी तो इंटरनेशनल, मैंने आप भी अपनी टीवी पे pride आना के है, लिए मुझे भी स्पॉन्सर चाहिए, मैंने भी कमीज उतारनी है अपने बाथरूम में नहाने से पहले, अपनी आप बॉडी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। देखें ये इंडिविजुअल जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो वो आपको बैक बाइट करता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का जब ये मामला मुझे नज़र आया, हमने इसके ऊपर एक क्राइटेरिया बनाना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनर कि यार ये चाहिए, अगर आप ये नहीं करेंगे आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो तो रह के मैं निकल गया। इसीलिए जो है, इसीलिए जो इधर बैठा है ना, जो ये करता है वो नहीं रहता वहाँ। ये आपसे पहले जख्मी आए हुए हमारे पास एक, ये क्या थे वसीम, सॉरी, लेकिन वो मिसबा वाज द मजे की चेयरमैन बात है। ऑफ द व्हाट कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, जब ये मजे सब कुछ की हो रहा बात है, सारे चेंज हो जाते हैं लेकिन ट्रेनर और वो जो स्टाफ होता है वो वही रहता है, क्योंकि वो बाहर से हैं। पाकिस्तान वाले सारे चेंज हो गए। था। अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर। अबे उनको सब पता है हमारे कल्चर में किसको उन्होंने मस्का लगाना है, किसको मक्खन लगाना है, किसको दूर रखना है, वो सब सीख गए हुए हैं यहाँ के। और एक मैं और बट बात निकालना है तो फिर सबको निकालो ना, नया पूरा नया लेके आओ माइंडसेट। गुड पॉइंट देयर क्योंकि फ्रॉम ये वसीम। सोशल मीडिया कैंपेन में भी बहुत नुकसान वो है। अद्दा क्योंकि तितर, अद्दा ये पटेल। कभी नहीं हो सकता कि आपका ट्रेनर हेड कोच और कप्तान के पीछे छुप जाए और वो कहे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फिटनेस, योर फिजियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यही बात मैंने उससे की कि अगर ऐसा था तो तूने रिजाइन क्यों नहीं किया, तू तो इसी फील्ड इसी काम के लिए आया। कहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जब मुझे 3 बड़े बंदे आके ये कह दें तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग देन। रिजाइन तो कर सकता था। नहीं, लेकिन बट हर बंदे में वो हाँ, ये भी है, ये that is true that. Well, there you go. That's the culture. That's the mindset that we're dealing with, and those are the habits. Old habits die hard, and we have a habit of taking a break. So we're going to take a break right here on the HBL PSL 9 coverage in the Pavilion. Welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं our special coverage of the HBL PSL 9 on A Sports with the Pavilion. और आज है बड़ा मुकाबला, 5th match that is coming up in the HBL PSL season 9. It's Multan Sultans versus Islamabad United. Islamabad United की हम लोग बात कर रहे थे, उनके कप्तान की बात कर रहे थे, and a lot of other things that we were discussing about. But let's talk about Naseem Shah, who was missing for Pakistan in the World Cup, Wasim, and of course he was dearly missed because Pakistan fast bowling department struggled कर रहा था throughout the World Cup. जी. But now that you've seen him in the first game, you know he's going to be very important for us in this World Cup that is coming up. हाँ बिल्कुल, नो डाउट, गुड टू सी कि वापस आया है, इंजरी से शोल्डर का ऑपरेशन करा के आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. एंड दैट्स अ बिग डील। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिदम में आते हुए, अपना पेस में आते हुए, बट ही वाज हिटिंग द राइट एरियाज, राइट लेंथ, बिट ऑफ स्विंग अर्ली ऑन विद द बॉल। अब इसकी ऐसा ऐसा खेलता रहेगा, आप देखें इसकी पेस बढ़ती रहेगी और उसका कॉन्फिडेंस एज अ बॉलर भी आता रहेगा, बिकॉज जब इंजरी से वापस आते हो तो आपकी वो इंजरी पे काफ़ी ध्यान रहता है कि दोबारा ना आ जाए, वो डर जाने के लिए आपको लगते हैं 4-5 मैचेस एंड देन यू गिव योर 100% एंड रन इन। आई थिंक कि टाइम तो ज़ाहिर है इसको चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हमने देखी इनकी बॉलिंग में डेवलप किया इन्होंने स्लोअर वंस, जो ये बड़ा ज़बरदस्त यूज़ करते हैं, स्लो बाउंसर्स और स्लोअर वंस, और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शंस इस टाइम जो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है विकेट लेने में, वनडे में भी हमें वर्ल्ड कप में नज़र आया, फिर T20 भी, उसके बगैर आपके लिए मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है सर्वाइवल। तो आई थिंक पाकिस्तान नीड्स हिम, होपफुली PSL जो ये आगे जाएगा ये अच्छी बॉलिंग करे। Yeah, as he gets more and more momentum. 3 brothers in the same side, Azhar, and we are going to see more action from all of them. But जो अभी हम लोग शादाब की बात कर रहे थे कि मिसबा ने शुरू में भी पॉइंट आउट किया कि वो not giving him the opportunity, you know, एक ओवर करा के मसलन हटा दिया कर दिया. Will the management be talking to Shadab about? आई थिंक कि जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जितने भी देखा गया कि वो जो बॉलर्स को यूज़ करना आना चाहिए, किस टाइम पे किसको ओवर कराना है, क्योंकि अब देखें फ़हीम भी काफ़ी स्ट्रगल किया उसने थ्रू आउट द मिडल और ऑप्शन नहीं थे आपके पास इन दी एंड, तो आपको जाना पड़ा। तो आई थिंक कि उसको किसी तरीके से आपको मैनेज करना है। आई थिंक कि पहला ओवर बहुत ज़रूरी होता है, या तो आप पहला ओवर आप
करा दें, या फिर आप 7वां ओवर यूज़ कर सकते हैं। ये 2 ओवर ऐसे हैं जो आप अपने काइंड ऑफ या इनएक्सपीरियंस या वीक लिंक को यूज़ कर सकते हैं इन T20 क्रिकेट। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट था उस बेचारे को 1 ओवर मिला, लेकिन आई एम श्योर फहीम को भी तो फड़कास पड़ रही है वही ना। बात है, लेकिन वो उन्होंने फिर चेंज नहीं किया उस चीज़ को। 13.33 की एवरेज, दैट्स टू मच। That's why I'm saying maybe the younger Shah would have been given another opportunity. And what's his name? Their captain Shadab should remember he came as an emerging player. Yes. Misbah was captain. I was with the cricket director and Dino was our coach. जी। Misbah बड़ा ने उसको इम्पोर्टेंट pick होता है। करवाया था। पहले मैच में इस शादाब को अच्छे खासे रन हो गए लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, बट दैट डजंट मीन, मैं उससे भी पहले की बात करता हूँ, जो पहला ये वनडे में हमने इसको पिक किया, जो लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट था हमारा फैसलाबाद में हो रहा था, आप ही ने फिर इसको पिक करवाया था ना जी, उसके बाद। उसमें ये अभी उस वक्त तक तो बिल्कुल ही ऐसे था ना, मेन इसकी बैटिंग थी, बॉलिंग ऐसे ही था कि जैसे पार्ट टाइम आप किसी को बॉलिंग कराते हैं, फील्डर अच्छा था, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट इसको रन्स हुए, बट मैंने आई जस्ट मेड श्योर कि ये मैक्सिमम बॉलिंग करे, जहाँ भी हो इसको मैं गेम में रखूँ, इसको मैं 7-8 ओवर एटलीस्ट इसने करने ही करने, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इन द लॉन्गर रन फॉर द टीम एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर, क्रूशल गेम्स में फिर वो आपका बंदा तैयार होता है। अगर आप उस साइड पे खड़ा रखेंगे, बॉलिंग ही नहीं देंगे, तो वो तो गेम से आउट है ना, उसका कोई मकसद ही नहीं है फिर। All right, with that, it's time for the pitch report, brought to you by Ufone 4G. Well, Danny Morrison being Danny Morrison. Thank God he's back. I know. पहले मैच में तो बिल्कुल ही पहले हो गया। मैच में पिच में बिल्कुल लगा डेड, हाँ। डेड एज डोनेल। पिच रिपोर्ट दिए सर्कस का कोई सीन। Circus, kind of bit of dance, bit of couple But that's Danny. Danny is a carnival in his own existence, Yeah, right? Danny- He's Danny- like Danny- यूटिलाइज होते हैं, फूड से यूज्ड टू होते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है हर कंट्री डैनी में के साथ जाके। सबसे जो ज़बरदस्त सीन हुआ था ना, वो थोड़ा सा बोलता है जिस तरीके से जेपी टुमनी, तो वो उसकी ज़बान पे चढ़ा नहीं, कहता है जेडी पुमनी। He's a great guy though. He's a great guy, though. That's really funny, though. J.D. Pumini. Danny, Danny. you had one job. That's one job. Get the proper pronunciation. We got the Hoover today for you, Wasim, to comment on your favorite part of the game, which is Hoover the pitch. बताता भी जब होता है, जब पिच की दिखाते हैं, ये क्लोज अप दिखाते हैं जी, पूरा। आ गया सर, ये देखिए, ये आ इसे गया हूवर पूरा। कहते हाँ हैं जी। क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग में। दसो दसो जी तुसी लोकल हो सारे तीनों। वे घास वो फॉरेन वसीम में ही सबको लोकल करती है। तो मैं ग्राउंड मैन की रिपोर्ट दे देता हूँ, जो ग्राउंड मैन बताते हैं हमारे। हाँ। अच्छा जी, ये क्या करेगी पिच? की करेगी? ए देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। जिसने पिच बनाई होती है वो ये कह रहा होता है। अब आप पूछे स्पिन होगा कि नहीं होगा? स्पिन होगा कि नहीं होगा? स्पिन जो है ना वो हाथ में होता है। What? उंगलियों में सॉरी, उंगलियों में होता है। जिन्हें करना आता है वो करेगा, जरा करना जिन्हें नहीं करना वो नहीं करेगा। That's a safe kind of answer. That's a very safe kind of 50-50 allow These are the kind of pitch reports we got throughout the World Cup and हाँ, Asia World Cup. Cup में yeah? ये भी ऐसी वही आ रही थी ना हमारे पास pitch reports Looks के। a better pitch than the first pitch, am I right? इस पे बॉल थोड़ा मुझे लगता है कि बेहतर आएगा, आएगा। लेकिन स्टिल बैटिंग फर्स्ट इन मुल्तान इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमने देखा है कि मुल्तान में बाद में बॉल थोड़ा सा नीचे रहता है। शायद ये टिंज ऑफ ग्रास आपको अगर थोड़ी ड्यू सी पड़ने को फर्क पड़ेगा उससे? ड्यू हमें पिछले मैच में भी यहाँ पे नज़र नहीं आई थी मुल्तान के पिछले में अंदर। एक्चुअली क्लाउडी था पूरा, वहाँ पे windy बारिश भी बहुत। लाहौर में भी हुई है, वहाँ पे भी है। I don't know, But due Misbah, factor था। from what you've seen right now, Yeah. win the toss, do what? आई थिंक दोनों टीमें, इस्लामाबाद तो बैटिंग नहीं करेगी, Like वो chasing. चेस करेंगे बाय देयर स्ट्रेंथ, बट मुल्तान विल नॉट माइंड अगर उनकी पहले बैटिंग भी आती है। जैसे पिछले मैच में वो सोच रहे थे कि हम बॉलिंग करेंगे, हालांकि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है पहले, हमेशा मुल्तान ज़्यादा लाहौर की तरह पहले बैटिंग करना चाहती है, बट वो दूसरी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए हो सकता है वो चेंज करें। मुझे लगता है कि बैटिंग करनी चाहिए मुल्तान को, ऐसी बात नहीं है उनकी टीम जो भी टीम different जीते दे शुड बैट, यू थिंक? मुझे इस्लामाबाद विल डेफिनेटली, मुझे लगता है कि Go they for will the ball. chase. वो अपनी बैटिंग पे बैंक करते हैं, लेकिन बॉलिंग पिच पे को देख के अगर आप रन्स ऑन द बोर्ड, अगर आप 200 खुद कर दो तो यू ऑलवेज हैव दैट चांस, रन्स ऑन द बोर्ड
200 चेस करने से बेहतर है 200 रन्स पोस्ट कर दो ताकि आप उसको डिफेंड एक इंटरेस्टिंग चीज रीजा हेंड्रिक्स की बात कर रहे थे डैनी की, जब उन्होंने उनका इंटरव्यू किया तो कह रहे थे कि जी थोड़ी फंस के आ रहा था बॉल पिछली पिच पे, सो मे बी डू वी एक्सपेक्ट, आई डोंट नो, आई मीन इसमें थोड़ा इस पे ड्राई शाइन नजर आ रहा था, थोड़ा सा लाइट सा शाइन है, घास भी है और वो ड्राइनेस नहीं है जो हमें पिछली में नजर आई थी। 9 में से 7 मैच जीती है यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट, बट ऑब्वियसली अब डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट मंथ है, तो नॉर्मली ऐसा पिच आए तो हिट थ्रू द लाइन आपके शॉट्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि जो डेक है लाइक जो इसकी मट्टी है वो थोड़ा लो बाउंस देती है, तो वहाँ पे जो बॉलर स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करता है 6 to 8 मीटर हिट करके वेरिएशन के साथ, वो मुश्किल क्रिएट करता है, बॉल थोड़ा नीचे रहता है, थोड़ा स्लोअर वन करके वेरिएशन से आप डाउट क्रिएट करते हैं। आई थिंक ये होगा यहाँ पे जो मुझे लगता है ज़्यादा सक्सेसफुल बॉलिंग के लिए हो सकता है। एज ए बैट्समैन यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ विड्थ, अगर इस पिच पे आप विड्थ देंगे तो यू गोइंग ऑल ओवर द पार्क, दोनों साइड पे, दोनों साइड पे बैट्समैन दे लुक फॉर इट इन दिस फॉर्मेट, बॉलर हिटिंग द स्टंप्स इज द बेस्ट ऑप्शन। Yeah, stay within the stumps and that should be the best option. For Islamabad United, because Multan ko home ground advantage hai ek tarike se and all. For Islamabad United, they like to chase. But bowling first on a pitch like this, what should the batsmen be anticipating? Because you've got Naseem Shah, you've got the Shah brothers on the other side. They do have some firepower. नहीं, बॉलिंग इस्लामाबाद की भी पोटेंशियल तो उनके अंदर मौजूद है और उनके पास ऑप्शन भी है, स्पिन ऑप्शंस भी हैं, पेस ऑप्शन भी है। नसीम शाह इफ़ ही कम्स फुल रिदम में आ जाता है तो आई थिंक के बड़ा बैलेंस बॉलिंग अटैक है। फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, बट आई थिंक थोड़ी सी I'm all for responsibility, but he has been getting hammered in this format for a long time now. और ये 2-3 बॉलरों के साथ हो रहा है, हसनैन भी काफ़ी अरसे से इसी तरह हो रहा है, तो आई थिंक या तो इनको ऑप्शंस और देखने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है थोड़ी सी मुझे लगा शाइन थोड़ी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं गए जो जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो शाइन थोड़ा सा मे बी लग रहा हो, वो थोड़ा लाइट्स की वजह से भी थोड़ा सा लग रहा हो। मुझे लग रहा है कि पिच ठीक है, ग्रास थोड़ा सा है लेकिन फिर भी उतना अच्छा शायद ना हो। All right, okay, that's another perspective on the pitch. With that, we're going to take a break right here. But when we come back, we are getting closer to the toss. It is Multan Sultans versus Islamabad United. You're watching A Sports. This is the Pavilion. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HPL PSL सीजन 9। स्क्रीन के ऊपर आपके पास बराह रास्त शॉट्स हम दिखा रहे थे, प्लेयर्स वार्मिंग अप एट द मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, गेटिंग रेडी फॉर दिस बिग गेम। और अब से कुछ लम्हों बाद हम आपको बराह रास्त लेकर चलेंगे टॉस के लिए। वेट कर रहे हैं हम लोग टॉस की खबर आ जाए। एंड ये जस्ट बिफोर द ब्रेक आपने एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया पिच के हवाले से। सो विन द टॉस एंड डू व्हाट इन योर ओपिनियन, अगर जो आप सोच रहे हैं पिच वैसी है। अगर ड्यू का वहाँ पे सीन है तो बैट फर्स्ट। आई थिंक यू कैन obviously setting up total is tough, but you know okay, if you get to 170 175 it's going to be पिछले 9 hard मैचों में से 7 मैच मिस्बाह ने बताया कि वो टीम जीती जिन्होंने बैटिंग पहले की है, बैटिंग मेरी की। वैसे मिसबा जस्ट क्विक क्वेश्चन, अगर पिच जो है वो स्लो है, जो कहते हैं ना कि फंस के आ रहा है गेंद, ड्यू के बाद क्या वो बेहतर हो जाती है पिच? नॉर्मली ये बॉल अगर गीला हो जाता है, पिच को कुछ ना भी हो तो एडवांटेज तो बैटिंग साइड को होता है। बॉल स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, टर्न नहीं होता, ग्रिप नहीं होता, इवन ऑफ द पिच भी वो स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो अच्छा बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि लाहौर में कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल अगर ड्राई पिच है और ग्रास नहीं है तो उसमें अगर ड्यू कई दफ़ा गिरती थी, हम खेलें ऐसे मौसम में टर्न होना शुरू हो जाता था। अदरवाइज ऐसी पिचों पे बेहतर हो जाता है पिच। Yeah, with the passage of time, the game becomes better and better. About the lights, people have been talking. मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पे कि जी मुल्तान के कुछ प्लेसेस ग्राउंड में ऐसी हैं जहाँ पे लाइटें अच्छी नहीं है। Is that आप लोगों ने खेला हुआ है? Is that the case? ये देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इस साल के एंड के ऊपर चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मैसिव पार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम जो इंटरनेशनल वेन्यूज़ हमारे हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। ये ग्राउंड का शॉट आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। थोड़ी कम है लाइट, लो भी हैं और बड़ी पुरानी लगी हुई हैं जब, और इसलिए जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जब यहाँ पे T20 कॉम्पिटिशंस हुए हैं यहाँ पे और रावलपिंडी में, वहाँ पे कैच ड्रॉप करने की रेशो बड़ी है। अच्छा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी प्लेयर्स कहते हैं क्योंकि जिन्हें छड़ना उन्हें सूरज के भी छड़ देना, उन्होंने सूरज पै जाना, तो ये भी एक रीज़न होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
एंड यू नो वसीम, यू हैव बीन पॉइंटिंग आउट कि जो हम ड्रोन शॉट दिखाते हैं, रूफ का शॉट दिखाते हैं, दैट इज़ रियली समथिंग दैट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत नजर आती है सारे इसके लिए मेरा नहीं ख्याल रॉकेट साइंटिस्ट होने की नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। या चेयरमैन पीसीबी की ज़रूरत है। ये तो जो भी चेयरमैन साहब आए वो एक वेल ऑयल्ड मशीन में ना जाए, वो हो ना हो दूसरा चेयरमैन आए वहीं से शुरू हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स के एवरी चाह द कप भी लेना है तो चेयरमैन को पूछना, दैट कांट बी द केस। So if the Champions Trophy is to be held in Pakistan, the big question is, will the neighbors visit? That I can't answer. Yeah. I doubted they'll visit. They didn't come for Asia Cup, Asia so we Cup. had hybrid kind of अजीब सा कोई मॉडल बनाया था, but it worked, I suppose, in the end. Yeah. It didn't work for Pakistan though. Our boys were exhausted. Yeah, you know, अब वो भी तरीके से बनाते, हाइब्रिड भी बनाते, उन्हें एक दिन का रेस्ट देते, फिर ट्रैवल कराते, टूर्नामेंट भी ख़त्म करना था, वर्ल्ड कप भी होना था, so everything हश हश में हुई है। Just kind of too much pressure on the team and everybody that was involved. मुल्तान का बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, किसी भी वक्त टॉस की हमें खबर मिल जाएगी। थोड़ा सा लेट चल रहा है टॉस, मेरा ख्याल है कि 3 minutes to the toss. लेट नहीं हो सकता, टॉस से गए वो। भाईजान इतने तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। टेलीविजन या हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। या हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि बातें खत्म हो गई हैं जो मैंने करनी थी, सारी बातें मैंने पूछ ली आप लोगों से। Unless you guys have anything that you have in your mind that you want to talk. भूख बहुत लगी है, खाने का वेट। नहीं, I talk about stadiums renovation. Yeah. जो भी चेयरमैन आता है नहीं आता, नीचे से एक पूरी टीमें होती है ना, मार्केटिंग की, मेंटेनेंस की, ये इंटरनेशनल टूर्स की, डोमेस्टिक क्रिकेट के, सबके डायरेक्टर हैं and they very well get paid off, so they should be the जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारे मसला ये है कि जो भी नया आता है ना, वो पिछले वाले के अच्छे काम भी ख़त्म कर जाता है। तो आई थिंक कि वो जैसे वसीम भाई बात कर रहे हैं ना कि जो एक आप पैटर्न सेट कर दो, फिर वहीं से स्टार्ट ओवर बड़ा इसकी बड़ी सिंपल सी वो सोल्यूशन है। थोड़ा बिग, अगेन कोई साइंस नहीं है ये। अगर मैं हूँ चेयरमैन फॉर इंस्टेंस, मुझे पता लगेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं एक डोसियर तैयार करूँगा, एक पूरा पेज तैयार करूँगा कि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डू थिंग्स। हाँ, ये टू डू थिंग्स जो मैं शुरू कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ बेटरमेंट फॉर क्रिकेट। जो नया आएगा उसको वो मिल जाएगा, आई गो थ्रू इट, जो उनको पसंद होगा वो रखेंगे, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। सबसे पहले बंद करा देगा जो भी करे वो, Unfortunately. हाँ, बट जो भी करे कि अगले को, बट यू सी ये एक सिस्टम नहीं है। वो यहाँ चेयरमैन अनाउंस होता है, पहले वाला ऑफिस नहीं आता, दूसरे वाले के बंदे ऑफिस आ जाते हैं, पहले से मल मार लेते हैं। सो कुछ ऐसे ही हो रहा है, I know, पता लगता है। it's just been very bad. And there is a board of governors as well for Pakistan Cricket Board. There is? Yeah, apparently there is a board of governors. हैं? देश क्या है जी, मैंने सुना है कि बोर्ड भी होता है एक हमारा। लेकिन वो जो सिर्फ वोट देता है उस बंदे को जो पॉइंट किया जाता है पीएम साहब की तरफ से। ना दे तो फिर नहीं, कभी हुआ ही नहीं, अनअपोज्ड हुए हैं इस वक्त भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी लेकिन हैं। अभी एक इलेक्शन हुआ टेनिस का, एसामुल हक जीते, 8-7 के साथ जीते, समझ आता है कोई यार कोई इलेक्शन होएगा। जहाँ पे अनअपोज्ड हमेशा आपकी अपॉइंटमेंट्स हो जाए, वो दिखावा है। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर कर ही कुछ नहीं रहे, वो सिर्फ वहाँ पे मौजूद होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और वो कि sign बोर्ड कर ऑफ देते हैं, गवर्नर्स तो उसको आपके फैसला- वही रहते हैं ना, मोर और लेस वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू ये हुई हो तो बिल्कुल। उसमें कोई ना कोई जो आप कंटिन्यूटी बात कर रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इन चीज़ों पे, मैं हमेशा बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, जो चीज़ें आपको पता है कि यार ये हमने करनी है, उस पर कोई भी हो 3 चीज़ें पॉलिसी बोर्ड को ने, फॉलो। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस और आपकी क्रिकेट डेवलपमेंट, ये तीनों वो चीज़ें हैं जो क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो बदल दिए जाते हैं जैसे ही चेयरमैन बदलता है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर अगर कोई करने की कोशिश की जाए, उसको बदल दिया जाता है। डेवलपमेंट क्रिकेट की हमने कभी गौर ही नहीं किया। All right, both the captains are walking out to flip the coin. It's time for the toss, brought to you by Nestle Fruta Vitals. Well, there you have it. Multan Sultans have won the toss. That's the news out of the Multan Stadium. और इसके साथ ही वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का, brought to you by पामोलिव शैम्पू। ये वो सेगमेंट है जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज कौन सी टीम उनकी नज़र में जीतेगी, और फिर हम एंड में देखते हैं कि कौन जो है वो सही बताता है कि नहीं बताता। अभी तक मिसबा उल हक जो है वो लीड में रहे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। राइट मिसबा, वी स्टार्ट विद यू सिंस यू आर ऑन द लीडर बोर्ड ऑन टॉप। जब मुश्किल पर्चा आता है मेरी तरफ ही फेंक देते हैं आप। बताएं ना। मुल्तान मुल्तान सुल्तान्स स्किप। मैंने तो कल से हिसाब लगाया हुआ है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान कल से, राइट। एंड हफीज़? जी, मैं सोचता तो मुल्तान सुल्तान के लिए था, लेकिन बैटिंग फर्स्ट मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, तो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, जी हजरत। इस्लामाबाद। Okay, Islamabad. So we have a split again. It's Islamabad.
And 2 for Islamabad, 2 for Multan, and those are your expert predictions brought to you by Palmolive Shampoo. Playing 11 ले आए चूँकि दोनों टीमों में changes हैं. मिसबा, वसीम, take us through these two teams. आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं playing 11s जो कि दोनों टीमों की मौजूद हैं. दोनों में change हैं. Here you go. Right. जी, मुल्तान वन चेंज है उनकी, धानी नहीं है, उसकी जगह ओली स्टोन. बाकी सेम टीम है. रिजवान, डेविड मिलान, रिजा हेनरिक्स, यासिर खान, इफ्तिखार खुशदिल, डेविड विली, उसामा ऑब्वियसली इस पिच पे इम्पोर्टेंट होगा. एंड अब्बास अफरीदी. मोहम्मद अली bowled very well in the last game. So I think I am surprised कि धानी एक मैच के बाद नहीं खेल रहा, but this is how they just think. वसीम for Islamabad. क्रिकेट इस्लामाबाद में एक ही चेंज किया. हैदर अली की जगह जॉर्डन कॉक्स आया है, जो कि यहाँ पे हमें लिखा बताया गया कि ओपनिंग बैट्समैन है, किन्ने को ओपनर रखेंगे. He bats Middle order all as well. different numbers. So That's why Fahim they has just to really do well in the mid overs. Then of course Naseem Shah bowled well. His brother is playing as well, Ubaid Shah. He only bowled 1 overs. So yeah, their bowling looks slightly weaker than their batting, Islamabad. Yeah. Right, there you have it. Yeah, Dhani, of course, was a surprise drop there because Wasim आप भी कह रहे थे कि he should be given more chances. But look, this franchise cricket इनका काम नहीं है कि प्लेयर बनाना है प्लेयर. ये तो अपना जो मतलब होगा, जो उनकी टीम उनको चाहिए होगा, वही खिलाएंगे. ये बट यार धानी should have धानी की been. परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से काफ़ी. उन्होंने प्रीवियस सीजन में परफॉर्म मे बी लुकिंग एट अपोजिशन ऐसा बॉलर उन्होंने डाला हो कि जो शायद को मैचअप्स का भी आजकल है, तो उस वजह से भी आई थिंक इट्स नथिंग टू डू विद दैट कि 3 ओवरों में 30 हुआ, तो इस वजह से शायद चेंज कर दिया. ओले स्टोन जो खेल रहा है उसकी 82 विकेटें हैं T20 में, और उसकी इकॉनमी रेट है जस्ट ओवर 8.5. और नॉटिंगहम से खेलता है ये. अभी मैंने इसको आयल T20 में दुबई वगैरह में देखा है. सो he's got pace, no doubt. All right, gentlemen, with that, I thank you all. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. Thank you, Hafiz. Thank you, Azhar. We are going to reconvene after the game. Stay with us. It's a really good game of cricket coming out your way. Multan Sultans versus Islamabad United, live from Multan. You're watching The Pavilion on A Sports. Our continued coverage of the HBL PSL Season 9 continues after the game. See you on the other side.